નમસ્કાર મિત્રો, હું ઋષિ પાઠક નેચર ક્લબ સુરત કો એજ્યુકેશન વિથ પાયથન અને વાઇલ્ડલાઇફ એન્ડ નેચર વેલફેર ટ્રસ્ટ તરફથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો જેમ આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે વાઇલ્ડલાઇફ અભિયાનને આજે આપણે 24માં સિરીઝના આપણે આજે 24માં દિવસે પહોંચી ગયા છીએ. રોજ આપણે અલગ અલગ તજુર્બો સાથે અલગ અલગ વિષયો પર વેબિનાર્સ અટેન્ડ કરીએ છીએ. તો આજે આપણી સાથે પુણેથી મિસ્ટર સોરી સાલુકે સર જોડાયા છે, જે સ્કોર્પિયન્સ એટલે કે ગુજરાતીમાં જેને આપણે વીછી તરીકે ઓળખીએ છીએ, જેની પર ખૂબ જ સરસ કામગીરી કરી છે. પ્લસ એ ઘણી બધી એમને સ્પીસીસ પણ ડિસ્ક્રાઇબ કરી છે, શોધી છે. આવો એમનો વધુ સમય ના બગાડતા એમને જ રિક્વેસ્ટ કરીએ કે સેશનની શરૂઆત કરે. સર પ્લીઝ ટેક અ સેશન. I can start, Rushi? Yeah, you can. Yeah. So, thank you. Good evening, everyone. और सबको नमस्कार. और आज का जो टॉपिक है वो स्कॉर्पियन साइंस और स्कॉर्पियन फौना ऑफ इंडिया है. और एक पीपीटी के माध्यम से कुछ स्लाइड शेयर करते हुए मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा, जिससे कि आपको भी कुछ ऑडियो के साथ कुछ विजुअल्स भी देखने को मिले, कुछ फोटोग्राफ्स देखने को मिले. और मैं आई एम गोइंग टू ट्राई एंड मेक दिस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक एज सिंपल एज पॉसिबल. सबसे ज़्यादा कोशिश करने वाला हूँ कि ये सब लोगों को, सामान्य लोगों तक अच्छे से ये सब्जेक्ट पहुँचे, बिकॉज यूजुअली arthropods and herpetofauna are treated as a neglected taxa, as well as there is a lot of fright about these taxas. लोगों को बहुत भय रहता है मन में इन सब चीज़ों के बारे में. टेरिफाइड रहते हैं लोग कि काटते हैं, डंक मारते हैं. when it comes to snakes, lizards, scorpions, insects, it's very distasteful. So my main intention is going to be to help you understand how interesting this subject is and how this has fascinated me. मुझे बचपन से इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे, मैक्रो लाइफ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और ऑब्जर्व करते आया हूँ मैं. और रिसेंटली लास्ट 4 years आई एम वर्किंग ऑन स्कॉर्पियन फॉना ऑफ इंडिया. आई एम डिस्कवरिंग अ लॉट ऑफ टैक्सोनॉमिक mysteries related to scorpion fauna in India. So I will be sharing with you the PPT. Yeah, so this is you can see on the left top corner INHER का लोगो दिखाया है इस पीपीटी में. So this is the institute जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एजुकेशन एंड रिसर्च. ये पूना में बेस्ड इंस्टीट्यूट है और इनके माध्यम से आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू INHER बिकॉज दे हैव गिवन मी अ वेरी फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म टू प्रेजेंट माय वर्क. मुझे पार्शियल फंडिंग भी INHER थ्रू मिल जाता है और मेरा सारा जो रिसर्च है वो मैं INHER थ्रू करने की कोशिश करता हूँ. मुझे गाइडेंस भी बहुत सारा INHER के माध्यम से मिल जाता है बिकॉज द ट्रस्टीज ऑफ INHER are some of the great taxonomists from India who have retired from organizations like Zoological Survey of India. और उनके साथ काम करने में मज़ा भी बहुत आता है, सीखने को बहुत मिलता है और अच्छी अच्छी चीज़ें डेवलप करते हैं हम लोग. सो नेक्स्ट स्लाइड. Yeah. So let's start with understanding what scorpions are. I am going to try and be bilingual with you all. I know most of you won't, understand my local language, and I won't understand your local language. So I'm going to be speaking in English as well as Hindi. So जो भी कठिन शब्द है, टेक्निकल शब्द है, वो मैं डेफिनेटली इंग्लिश में यूज़ करूँगा और बाकी ज़्यादा करके बातचीत जो होगी वो हिंदी में होगी. फर्स्ट 40-45 मिनट्स प्रेजेंटेशन रहेगा और उसके बाद लास्ट के जो 15 मिनट है उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं. So let's start with the basic classification of scorpions. Scorpions, where are they placed in the entire animal kingdom? And you can see here that you can see different classes are there. जिसमें आर्थ्रोपॉड के अलग अलग जो क्लासेस आते हैं उसमें एक क्लास जो ब्लैक मार्क किया हुआ है दैट इज एराक्निडा. So arachnida के अंदर, arachnida means the animals which have 8 legs and jointed body. So उसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं वो स्पाइडर्स है, स्कॉर्पियंस है,
ticks से और mites से. So we are going to concentrate today on scorpions. I have been working on scorpions. I am extremely passionate about this subject. और बहुत सारी छोटी मोटी चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा. Next. Yeah. So when you talk about something as interesting as scorpions, the thing that comes to my mind first is how scorpions might have evolved. So scorpions ka evolution is extremely interesting because they are the oldest members to have stepped on the land. We all know, हम सबको पता है कि पानी से लाइफ लैंड पे आया है. We have traveled from water to land, and in this journey of land to water, around 450 million years ago, 450 million साल पहले, scorpions were the one of the early animals which came from water to land. So जो ancestors है scorpions के, जो पहले के जो एनिमल्स है स्कॉर्पियंस जहाँ से इवॉल्व हुए हैं, जहाँ से उनकी उत्क्रांति हुई है, वो एनिमल्स काफ़ी बड़े थे साइज में और वो पानी में रहते थे. सो दे वर एक्वेटिक एंड दे वर वेरी लार्ज. दे वर हमंगसली लार्ज, ग्रेटेस्क्यूली वियर्ड इन साइज एंड शेप, और डरावने थे काफ़ी. और ये सब कहाँ से पता चलता है, ये हमको कहाँ से पता चला है, तो फॉसिल रिकॉर्ड से पता चला है. सो यू कैन सी हियर इन द स्लाइड्स राइट नाउ द left bottom image that you can see is the image of a fossil record of a scorpion, and this is not a scorpion that you see today. It is a primitive scorpion. It is a fossil of ancestor of scorpion which was in water. और आपको अगर देखेंगे आप अच्छे से इसको, तो दो फ्लैप्स दिखेंगे. So those two flaps are to move in the water. So that is how ये पानी में तैरते थे, पानी के नीचे, एंड काफी बड़े आर्थ्रोपॉड रह चुके हैं. आर्थ्रोपॉड्स हैव रूल्ड द वाटर्स इन दैट टाइम फ्रेम 450 मिलियन ईयर्स अगो. और उसके बाद इनका लैंड पे आगमन हुआ, और देन दे वेंट ऑन चेंजिंग. दे वर लार्ज फर्स्ट. जो पहले लैंड पे आए रहेंगे वो बड़े ही रहेंगे, और वो बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वो छोटे छोटे होते गए. और ये सब चीजें हमको कहाँ से पता चलती है, तो फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलती है. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग व्हाट आर फॉसिल्स, बट स्टिल आई विल टेल यू. when the animals are there on the planet, in the water or maybe on the land, और जब कोई कैटास्ट्रॉफी होती है, मतलब जब भी कोई टेक्टोनिक मूवमेंट होती है जिससे कि लैंड मासेस मूव करते हैं, और ये पिछले 4.5 बिलियन ईयर्स से अर्थ पे होता आया है कि लैंड मासेस हैव बीन कॉन्स्टेंटली ऑन अ मूव. लैंड मासेस हैव बीन मूविंग. यू ऑल नो कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका, India and Australia was all connected with Antarctica, and we were one landmass which is called as Gondwana land. Gondwanian, we have a Gondwanian heritage, we have a Gondwanian history. So यहाँ से सब लैंड मासेस टूट गए हैं, और इनका जो टूटना है इसकी वजह से जो बहुत से बार क्या होता है कि एनिमल्स गेट बरीड, लाइव एनिमल्स गेट बरीड इन द सॉइल, और सेडिमेंट्री लेयर्स जो पड़ते हैं इन सब टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से इनके अंदर वो दब जाते हैं. सो जब बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये अंदर सेडिमेंट्स के अंदर दब जाते हैं, तो ये डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं. यू ऑल नो दैट व्हेनेवर देयर इज एनी एनिमल व्हिच डाइज, there are lot of recycling agents which are going to work on them. They are going to release the trapped energy from that animal into the atmosphere, or they are going to fix it back into the soil. और इसमें बहुत से नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट्स रहते हैं, काफ़ी सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, काफ़ी सारे फंगस रहते हैं जो ये काम करते हैं. बट ऑफ कोर्स दिस हैपन्स ऑन अ लार्ज स्केल प्रोफाउंडली व्हेन इट हैपन्स ऑन लैंड. ये चीज़ जब जमीन के नीचे बहुत से किलोमीटर नीचे जब सेडिमेंटेशन के अंदर फंस जाते हैं ये सब एनिमल्स, तो ये हो नहीं पाता, इनका डिकम्पोजिशन हो नहीं पाता, और ये जो स्थिति में है उस स्थिति में ये प्रिजर्व हो जाते हैं. तो इसको फॉसिल कहते हैं हम लोग, इसको फॉसिल रिकॉर्ड्स बोलते हैं. और जब बाद में थ्रू टेक्टोनिक मूवमेंट्स ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हैं अर्थ में, एंड देन ड्यूरिंग एक्सकवेशन, मतलब इनको जब खोद के निकाला जाता है तो फॉसिल के रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं. बहुत से बार ऐसा भी होता है कि हमको लाइव एनिमल फॉसिलाइज नहीं मिल पाता, लेकिन पत्थर में या सैंड में, सैंड का बाद में पत्थर हुआ रहता है सेडिमेंट्री रॉक्स में,
इनका इम्प्रेशंस मिल जाता है। तो ये जो एनिमल है उसका पूरा मोल्ड उस रॉक में मिल जाता है, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्रोबेबली दैट रॉक माइट हैव मोल्टन, और जो मोल्टन रॉक है वो उसका शेप ले लेता है। मोल्ड जैसे फैक्ट्री में मोल्ड्स तैयार होते हैं उस तरीके से फॉसिल्स का मोल्ड तैयार हो जाता है, और बाद में जब हम उसको एक्सकवेशन करके निकाल सकते हैं तो पैलियंटोलॉजिस्ट जो फॉसिल्स का स्टडी करते हैं वो साइंटिस्ट को पैलियंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। पैलियंटोलॉजिस्ट इसका डिटेल स्टडी करके इसका पूरा मॉर्फोलॉजी कैसे है, इसका एनाटॉमी कैसे हो सकता है, इसका पूरा जजमेंट निकालते हैं। कितना बड़ा होगा एनिमल, क्या खाता होगा, किस तरीके से रहता होगा, एंड बेस्ड ऑन दैट देयर आर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट कम आउट। सो पैलियंटोलॉजी इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। आप जो स्कॉर्पियंस में काम करना चाहते हैं वो स्कॉर्पियन फॉसिल्स में भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई विल जस्ट मेंशन हियर कि इंडिया में फॉसिल्स के ऊपर काम बहुत कम हुआ है। वी नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क प्राइमरीली ऑन पैलियंटोलॉजी टू अंडरस्टैंड how we have evolved, where we have come from. There are a lot of gaps. We don't know a lot of things. According to what I know, in fossil records, we have no fossil records of scorpions till now. Fish के काफी सारे fossils है अपने पास, little bit of human fossils है, complete human fossil अपने पास नहीं है, but थोड़े बहुत चीजें हैं, उनके कुछ artifacts मिले हैं, उनके कुछ hand tools मिले हैं जो उन्होंने बनाए हैं। तो there is a lot of scope to work in Himalayas. There's a lot of scope around the basins of Son and Narmada River, जहाँ पे फॉसिल्स मिल सकते हैं, बिकॉज काफ़ी पुराना क्रेटॉन्स है वहाँ पे, पुराना लैंडमास है वहाँ पे जहाँ पे सेडिमेंटेशन है। तो सेडिमेंटेशन में और काफ़ी पुराने लैंडमासेस में ये मिलता है। वेस्टर्न घाट्स में नहीं मिलेगा बिकॉज वेस्टर्न घाट्स इज कंपैरेटिवली वेरी यंग, अभी अभी फॉर्म हुआ है और वोल्केनिक इरप्शन से फॉर्म हुआ है, तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। एक राइट हैंड साइड में बॉटम में आपको एक एम्बर फॉसिल मिलेगा। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। बहुत पहले क्या होता था कि बहुत से पेड़ों में डिंक रहता है, गम रहता है, और ये गम में रेजिन रहता है। एंड वेन एवर देर आर एनिमल्स और उनके ऊपर, इफ यू कैन अज्यूम दैट देर इज अ स्मॉल इंसेक्ट सिटिंग ऑन अ ट्री, और जब वहाँ से रेजिन सिक्रीट होता है, जब गम सिक्रीट होता है, उस सैप सिक्रीट होता है उस ट्री से, वो एनिमल वो सैप के अंदर, रेजिन के अंदर फंस जाता है। एंड व्हेन देयर इज एनी टेक्टोनिक एक्टिविटी और वो नीचे चला जाता है सेडिमेंटेशन में, तो उसका एम्बर फॉर्म हो जाता है, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एम्बर। और एम्बर में वो पूरा एनिमल जैसा है वैसा प्रिजर्व हो जाता है। तो उसके काफ़ी सारे मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स मिल जाते हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर मिल जाता है, उसका टू सम एक्सटेंट वी कैन ऑल्सो एनालाइज व्हाट द कलर पैटर्न माइट बी इफ देयर इज अ एम्बर फिक्स्ड फॉसिल दैट वी गेट। बहुत रेयरली, बट एम्बर में एनिमल्स से ब्लड भी निकाला जा सकता है, और अगर ब्लड कंजर्व्ड होगा तो उससे डीएनए बिल्टअप किया जा सकता है, और डीएनए से आप we molecular tools पे we can come to know about lot of things related to how scorpions would have been। और ये सब जरूरी क्यों है? टू अंडरस्टैंड हाउ स्कॉर्पियंस might have evolved और वो अर्थ पे कैसे आए हैं। if you look at all other animals that you know primarily see around, all the charismatic animals, now we are talking about animals, and then Gujarat, if you see आपकी गुजरात की शान है the great wild ass which is found in the run of Kutch। ये बड़े एनिमल्स है, charismatic animals। if you go in central India, it is dominated by tigers, there are a lot of leopards, Asiatic lions throw your state Gujarat on the world map very easily because that's the only domain for Asiatic lions। तो आप ये सब देखोगे तो ये बहुत सारे करिज्मेटिक एनिमल्स है, बट आप जब इवोल्यूशन देखने के लिए जाओगे, इनकी उत्क्रांति समझने की कोशिश करोगे, तो आपको समझ में आएगा दैट दीज आर एनिमल्स व्हिच हैव कम वेरी लेटली। अभी अभी आए हैं ये पृथ्वी पे, हमारे पहले से आए हैं लेकिन बहुत रिसेंट है। अगर आप इनको देखोगे, आप एम्फीबियंस को देखोगे, काफी रिसेंटली आए हैं, 40, 60, 70 मिलियन ईयर्स के टाइम स्पैन में एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव कम ऑन टू लैंड। बट आप अगर आर्थ्रोपॉड्स देखोगे और उसमें स्कॉर्पियंस देखोगे, तो यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ 450 मिलियन ईयर्स। दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप फॉसिल्स का स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि these animals have not changed much।
थोड़े बहुत चेंजेस डेफिनेटली हुए हैं बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टाइम, 450 मिलियन ईयर्स, उसमें बिलियंस ऑफ जनरेशंस हैव पास्ड, और हर एक जनरेशन में म्यूटेशन थ्रू थोड़े थोड़े हल्के फुल्के से चेंजेस हो जाते हैं, और नेचुरली कुछ चेंजेस सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ चेंजेस आर सिलेक्टेड इन, सम आर सिलेक्टेड आउट, और उससे चेंजेस बनते जाते हैं और अलग अलग स्पीशीज क्रिएट हो जाती है। तो ये बेसिक फंडा है जिससे पूरी सृष्टि में अपने को बहुत ज़्यादा एनिमल लाइफ देखने को मिलता है, बहुत डाइवर्स एनिमल लाइफ देखने को मिलता है। बट इफ यू सी स्कॉर्पियंस एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स, आपको दिखेगा कि स्कॉर्पियंस में बहुत कम चेंजेस हुए हैं। सो स्कॉर्पियंस आर इंटरेस्टिंगली ऑल्सो कॉल्ड एज प्री हिस्टोरिक। सो प्री हिस्टोरिक का मतलब ही यही होता है कि उनमें बहुत कम चेंजेस हुए हैं, और 450 साल में इनमें बहुत कम चेंजेस होने का ये भी एक कारण हम बोल सकते हैं, इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि दीज आर हाईली सक्सेसफुल एनिमल्स ऑन द अर्थ, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। सक्सेस का कि हम जब सक्सेसफुल बोलेंगे इनको, तो बेस्ड ऑन सर्टन फैक्ट्स बोल रहे हैं। तो ये फैक्ट्स ये है कि आज अगर हम देखेंगे तो दुनिया में हर एक हैबिटेट में, हर एक माइक्रो हैबिटेट में वी कैन सी स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस जो है वो हर माइक्रो हैबिटेट में देखने को मिलते हैं। आप ग्रासलैंड ले लो, आप एवरग्रीन फॉरेस्ट ले लो, आप डेसिडियस फॉरेस्ट ले लो, आप माउंटेनियस टेरेन ले लो, यू कैन कंसिडर your worst extremely hot arid grasslands in Rajasthan and Gujarat borders, वहां पे भी स्कॉर्पियंस बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलते हैं। एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में, वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियंस की स्पीशीज है एंड बहुत ज़्यादा अनडिस्कवर्ड स्पीशीज है। एक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, आपको यकीन नहीं आएगा। हिमालयाज में एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 14,000 फीट, 15,000 फीट, सब जीरो टेम्परेचर्स में स्कॉर्पियंस देखने को मिलते हैं। Recently, 1 year back, I had gone to Spiti Valley in Himachal Pradesh, and I have collected scorpions from there. It's extremely interesting to see that animals like scorpions are surviving at that sub-zero temperatures. उनमें बहुत स्पेशलाइज्ड चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो सब जीरो टेम्परेचर्स में सर्वाइव हो पाते हैं। एज एन हाउ वी प्रोग्रेस विद द स्लाइड शो विल कंटिन्यू। नेक्स्ट, yeah, so this is one of the fossils which is पैराटोबुथस का फॉसिल है। ये लोरेंको जो बहुत बड़े साइंटिस्ट है उन्होंने डिस्क्राइब किया था। दिस इज फ्रॉम द अर्ली ट्रायसिक एरा, फ्रांस, अराउंड 250 मिलियन ईयर्स अगो। ये जो टाइम स्पैन है 250 to 199, ये एस्टिमेशन दिया जाता है, इसमें प्लस माइनस 50 मिलियन ईयर्स हो सकता है। द स्पेसिमेन इज अ एडल्ट मेल एंड यू कैन क्लियरली सी द एंटायर स्ट्रक्चर। अभी आगे के स्लाइड्स में कुछ मैं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा स्कॉर्पियंस का, लेकिन लेमैन को भी आपको देख के पता चलेगा कि इसमें बहुत क्लियरली आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। द टॉप पार्ट इज द पेडिपाल्प्स, देयर इज अ मिडिल पोर्शन व्हिच इज स्प्रेड विद carapace and abdomen with segments, and then there is a metasoma which is the tail sort of a scorpion, and with a telson which is the stinger. So ये सारा स्ट्रक्चर 250 मिलियन ईयर्स बिफोर यू कैन सी। अब इसी को मैं प्री हिस्टोरिक बोल रहा था कि अगर आप देखोगे तो 250 मिलियन साल पहले का भी स्कॉर्पियन आज वैसे ही दिखता है जैसे आज का स्कॉर्पियन दिख रहा है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई टर्म एज प्री हिस्टोरिक। आप अगर कंपेयर करोगे अदर वर्टिब्रेट एनिमल्स से, तो वर्टिब्रेट्स आर वेरी लेटली इवॉल्व्ड और उनका इवोल्यूशन इतना डेट बैक नहीं करता। सो दीज आर वेरी एंशिएंट, very prehistoric, and they have survived till the modern times only because they have something in them which has made them survive. We will look at it next. Yeah, so main चीज क्या है जो स्कॉर्पियंस को 450 मिलियन साल जिनको जो स्कॉर्पियन सर्वाइव हुए हैं उसकी मेन चीज क्या है? तो दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट, वी डोंट नो एक्चुअली व्हाट इज द रीजन व्हाई दे हैव सर्वाइव्ड, एंड large amount of animals have become extinct, वो survive नहीं हो पाए हैं। Scorpions have survived. So all scorpiologists as of now feel that the survival is only because of the amazing science which is hidden behind the scorpion's life, scorpion biology. So आप अगर देखोगे तो scorpion biology में
व्हेन यू सी प्राइमरीली यू लुक एट द स्कॉर्पियन मॉर्फोलॉजी, उसमें बहुत सारी घटक है, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बॉडी के जो यूज होते हैं उनके एडवांटेज के लिए, जिसकी वजह से स्कॉर्पियंस हैव सर्वाइव. सो आई विल स्टार्ट विद द मॉर्फोलॉजी फर्स्ट. इफ यू सी सबसे टॉप वाले सेक्शन में यू कैन सी देयर आर टू पिंसर्स, अ पेयर ऑफ पिंसर्स ऑन ईच साइड. दीज आर कॉल्ड एज पेडिपाल्प्स. जो सबसे ऊपर वाला सेक्शन है उसको मैनस बोलते हैं. मैनस के पीछे फीमर आता है, पटेला आता है, पटेला के पीछे फीमर आता है, एंड देन देयर इज अ कॉक्सा, एंड देन देयर इज अ ट्रोकेंटर जो अटैच होता है बॉडी को. जो बीच में दिख रहा है हेड जैसा, जो हार्ड क्यूटिकल जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ कैरापेस. Carapace is a very hard structure. It protects the animal from a lot of things, and पानी से भी प्रोटेक्शन मिलता है उसको, वाटरप्रूफ रहता है कैरापेस. उसके पीछे जो सेगमेंट्स दिख रहे हैं, दैट सेगमेंटेड पार्ट इज कॉल्ड एज मेसोसोमा, जिसके ऊपर सेगमेंट्स दिख रहे हैं आपको, और टर्गाइट्स है और प्री टर्गल एरिया भी है उसमें. और उसके पीछे जो टेल आ रहा है वो टेल को मेटासोमा बोलते हैं. मेटासोमा को 5 सेगमेंट्स है, आप ठीक से देखोगे तो 1 2 3 4, फिफ्थ इज द लॉन्गेस्ट वन, बाकी शॉर्ट है सारे. और लास्ट जो पार्ट है जिसको एक कर्व्ड ऐसे बीक जैसे, बर्ड के बीक जैसे प्रोजेक्शन है, उसको टेल्सन बोलते हैं. सो टेल्सन इज द स्टिंगर, जिससे ये एनिमल स्टिंग करता है, और उसकी वजह से जो वेनम रहता है उसके टेल्सन में, वो स्टिंगर से, उसका जो एक्यूलस है, वो जो लास्ट एंड है पार्ट का, उसको एक्यूलस बोलते हैं. वो एक्यूलस से वो स्टिंग करता है और वेनम इंजेक्ट करता है. All scorpions found in the world are venomous. They have got venom in their stinger. The degree of venomosity will change. कुछ बहुत ज़्यादा जहरीले रहेंगे, कुछ कम जहरीले रहेंगे, लेकिन venom सब स्कॉर्पियंस में होता है. फिर आप अगर देखोगे अपेंडेजेस, तो उनको 4 pairs of legs है ईच साइड में. देयर इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑन ईच साइड. और लेग्स के ऊपर अगर आप ठीक से नजदीक से देखोगे तो देयर आर ब्रिसल लाइक हेयर इज देयर, व्हिच इज कॉल्ड एज सीटे. ये सीटे भी उनका, ये सीटे अगर आप देखोगे तो पेडिपाल्प से, मतलब आगे के जो अकड़े हैं उनके दो, वो पेडिपाल्प से लेकर उनके लेग्स तक, उनके मेटासोमा तक, हर जगह पे टेल्सन तक उनको सीटे है. ये सीटे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज अ सेंसरी ऑर्गन. तो ये सेंसरी ऑर्गन की वजह से ये सेंस कर पाते हैं कि आजू बाजू में क्या चल रहा है. अगर मतलब रिस्क है, डेंजर है, क्या है, या प्रे है जिसको हम खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इनको इसके ऊपर से पता चलती है. और वेंट्रल व्यू अगर आप देखोगे, राइट हैंड साइड में वेंट्रल व्यू है, इसमें आपको ऐसे 2 कर्व्ड सफ़ेद येलोइश कलर के चीज़ें दिखेगी, तो इनको पेक्टिन्स बोलते हैं. दीज आर अगेन वेरी इंटरेस्टिंग सेंसरी ऑर्गन्स विच आर स्पेसिफिक टू स्कॉर्पियंस. मतलब दुनिया में पेक्टिन्स स्कॉर्पियंस को छोड़ के किसी भी दूसरे प्राणी जगत में देखने को नहीं मिलते. नेक्स्ट. नेक्स्ट स्लाइड. या सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्रीन कलर का कैरापेस है, रेड कलर का टेल्सन है जिसके अंदर वेनम होता है, और वेनम जो इंजेक्ट होता है अपने दुश्मन को, जब इंजेक्ट करते हैं ये प्रे को या दुश्मन को जब इंजेक्ट करते हैं, तो एक्यूलस की हेल्प से इसको प्रोजेक्ट किया जाता है. सो इफ यू सी इन द कंप्लीट बॉडी, द एक्यूलस इज एक्सट्रीमली हार्ड. और आपको इसके अंदर की भी एक मतलब एक फन फैक्ट बताता हूँ कि जो एक्यूलस है वो बहुत हार्ड रहता है, और उसमें मेटल्स की मात्रा है. मतलब इट्स नॉट ओनली cells, it's not only tissues, but there are metals which are inside the very hard cuticle. और जिंक पाया जाता है इसमें, टू सम एक्सटेंट मैंगनीज पाया जाता है, लोहा पाया जाता है इनमें, और इसकी कॉम्बिनेशन से बनता है. देयर इज ऑल्सो हाइपोथेसिस दैट स्पीशीज वाइज या फैमिली वाइज इनमें अलग अलग कंटेंट्स होते रहेंगे रिलेटेड टू व्हाट आर द मेटालिक कंटेंट्स ऑफ द टेल्सन. दे माइट बी डिफरेंट एज पर द स्पीशीज और एज पर द फैमिलीज, पर इस पर कुछ काम हुआ नहीं है ज़्यादा. और अगर देखोगे तो मेटासोमा मतलब टेल जो है उसको, एज आई टोल्ड यू, 5 पोर्शन, 5 सेगमेंट्स है. सेगमेंट 1 इज द स्मॉलेस्ट, देन देयर इज सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4 एंड सेगमेंट 5 इज द लॉन्गेस्ट वन. देन आप अगर देखोगे तो इसका जो येलो कलर का, जो ग्रीनिश येलो कलर का जो बॉडी है, दैट इज द मेसोसोमा.
एंड इट हैज़ 7 सेगमेंट्स, द 7th इज द लॉन्गेस्ट, बाकी सब शॉर्ट है। आगे का देखोगे तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आगे इनके 2 पिंसर्स है जो जिसको मैं आंकड़े बोल रहा हूँ, ये आंकड़ों के बीचों बीच यू कैन सी देयर आर स्मॉल स्मॉल पिंसर्स लाइक दीज, सो दोज आर माउथ ऑर्गन्स, जिससे कि वो कटिंग करते हैं, च्यूइंग करते हैं प्रे को और फिर कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट। Yeah, so as I told you, you can see the telson venom apparatus उधर से आता है। राइट हैंड साइड में जो येलोइश ऑरेंज कलर का जो ऑर्गन है, that is a telson, and you can see there are venom glands pointed over there. There is a sensory hair which is called as a setae, and there is a sting which is called as an aculus, and aculus से वो कर्व करके पीछे से आगे की तरफ स्टिंगिंग करते हैं ये। और लेफ्ट साइड में आप अगर देखोगे तो there is a organ called pectin, which is very interesting organ because it is specific to scorpions. Pectins are not found in any other animals apart from scorpions, and they are very sort of they are flexible, थोड़े से मूव होते हैं, फर्स्ट जॉइंट पे रहते हैं और ऐसे ऐसे मूव होते हैं, और इस तरीके से वो सेंसिंग भी करते हैं। और सेंसिंग के अलावा भी अगर इनका पेक्टिन्स का कुछ रोल है तो वी डोंट नो स्टिल, बट हो सकता है, ऐसा एक एस्टिमेशन है कि इसका और भी कुछ रोल हो सकता है, इवोल्यूशनरी पर्पस हो सकता है, पर उस पर कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं है। नेक्स्ट। या वेरी फ्रैंकली, अगर कॉमन मैन के हिसाब से देखा जाए और आप अगर स्कॉर्पियंस देखने को जाओगे तो मॉर्फोलॉजी जो अभी मैंने बताया कि ये पेडिपल्ब्स है, ये उसका मेन बॉडी है, कैरापेस है, पेक्टिन्स है, थोड़ा सा बोरिंग होता है because it is a very basic science which is very important, very important. It's imperative to learn that if you want to get into understanding how scorpions are and what species are there in India, you have to understand the morphology. It's very important. But agar aap primarily to influence the masses, see right now I'm looking at all of you, and all of you I am considering that you might be, you know, some of you might be science undergraduates, some of you might be school children, some of you might be senior citizens, and you know, because I want to drive your interest towards these fantastic and most interesting animals, I would now come at slowly at the very interesting facts and very mesmerizing things about scorpion biology. तो पहली बात हम एक देखेंगे कि 1960 में एक बहुत सनसनी डिस्कवरी हुई थी दुनिया में, और जिसके बाद स्कॉर्पियन बायोलॉजी या स्कॉर्पियन स्टडी करना बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, and that is about the fluorescence. Each and every species of scorpion in the world, रात को आप अंधेरे में ही स्कॉर्पियन दिखते हैं। बाय द वे, स्कॉर्पियंस ऑल आर ओनली नॉक्टर्नल, ओनली फ्यू juveniles and subadults they come out and feed in the day sometimes, क्योंकि वो रात को डरते हैं बाहर आने से, बिकॉज बड़े स्कॉर्पियंस आजू बाजू में रहते हैं, उनसे वो मारे जाएंगे। तो स्कॉर्पियन ज़्यादा करके मैक्सिमम स्कॉर्पियंस ये रात को एक्टिव रहते हैं, और ये जब रात को एक्टिविटी करते हैं तो आप अगर उन पे अल्ट्रावायलेट टॉर्च मारोगे तो उसमें ये एक अलग तरीके का फ्लोरेसेंस एमिट करेंगे। आपको अभी फोटो में दिख रहा होगा कि दिस इज अ यूवी इमेज, और यूवी इमेज में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, ऐसे लगता है जैसे मैजिक है। अगर आप रात को फील्ड पे आओगे और यूवी टॉर्च कोई अगर फील्ड बायोलॉजिस्ट वहाँ पे लगा रहा होगा तो आपको ऑलमोस्ट लगेगा कि ये कुछ मैजिक दिखा रहा है, बिकॉज जगह जगह पे जो उनके हाइडिंग एरियाज है वहाँ पे आपको पेडिपल्ब्स दिखेंगे, उनका बॉडी दिखेगा, छोटे स्कॉर्पियंस, बड़े स्कॉर्पियंस आजू बाजू में दिखना चालू हो जाएगा बिकॉज ऑफ द यूवी। सो ये 1960 में डिस्कवरी हुआ था, और इसका रीजन, इसका इवोल्यूशनरी रीजन ये क्यों हुआ है, व्हाई डू दे एमिट फ्लोरेसेंस, वी डोंट नो, नोबडी नोज, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जो अपर लेयर है इनके स्किन का, जो टॉपमोस्ट लेयर है, इस लेयर में इनका एक केमिकल रहता है जिसकी वजह से ये फ्लोरेसेंस एमिट करते हैं, और वो इतना हार्ड है, उसका एग्जिस्टेंस उस लेयर में, उस केमिकल का एग्जिस्टेंस इतना हार्ड है कि जो 200, 250, 150 साल पुराने फॉसिल्स मिले हैं, उन फॉसिल्स के अंदर भी अगर वो फॉसिल को भी आप अंधेरे में उसके ऊपर अगर यूवी टॉर्च मारोगे तो वो चमकेगा। तो इतना हार्ड है ये कि ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स वो जो केमिकल है जिसकी वजह से ये फ्लोरेसेंस एमिट करते हैं वो गया नहीं है।
वी आर वेरी ग्रेटफुल टू दिस डिस्कवरी बिकॉज इस मैजिक की वजह से आज स्कॉर्पियंस पिकअप करना बहुत इजी हो गया है। 20-30 साल पहले भी पता था लोगों को, मतलब 1960 के बाद पीपल इन द वर्ल्ड न्यू अबाउट दिस, बट इंडिया जैसे कंट्रीज में वी वर नॉट एबल टू अफोर्ड यूवी टॉर्चेस सो इजीली। यूवी टॉर्चेस नहीं मिलते थे। आज यूवी टॉर्चेस मिलाना बहुत इजी हो गया है। अमेजोन पे यू कैन शॉप फॉर अ यूवी टॉर्च एंड यू जस्ट गो इन द वाइल्ड एंड यू विल गेट अ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ स्कॉर्पियंस। सो थैंक्स टू दिस, ये तरीके से हम लोग अभी जो सैम्पलिंग करते हैं पिछले कुछ सालों में, ये इस तरीके से करते हैं। इससे बहुत इजी हो जाता है स्कॉर्पियंस मिला पाना। और बहुत से बार हम लोग जब फील्ड सर्विस के लिए जाते हैं तो फील्ड व्हीकल ड्राइव करते करते एक हाथ से स्टीयर करते हुए, मनूवर करते हुए गाड़ी को, दूसरे हाथ से मैं विंडो से अर्थ कटिंग्स में, आजू बाजू के एरियाज में, बोल्डर्स के ऊपर नीचे, बरोज में, लैंड पे स्कैन करता हूँ, और जैसे ही चमकेगा, फ्लोरेसेंस होगा, वी वेट एंड देन वी गेट डाउन एंड वी डू द कलेक्शन। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। नेक्स्ट। या सो जैसे स्नेक्स मोल्टिंग करते हैं, ऑल स्कॉर्पियंस ऑल्सो डू मोल्टिंग। सो जब बच्चे बड़े होते हैं तो एडल्टहुड तक, बच्चे होने से एडल्टहुड तक 5 to 6, एनीवेयर बिटवीन 4 to 6 इनके इंस्टार्स रहते हैं, मतलब 4 to 6 टाइम्स मोल्टिंग करते हैं। हर टाइम जब मोल्ट आता है तो वो इट विल कम विथ अ लार्जर बैग विच विल अकोमोडेट अ लार्जर साइज एंड दे विल कीप ऑन ग्रोइंग। सो दिस इज अबाउट स्कॉर्पियन मोल्ट। एक्चुअली यहाँ पे एक वीडियो भी है जो आप सर्च कर सकते हैं। यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च फॉर स्कॉर्पियन मोल्टिंग वीडियोज एंड यू कैन see them. It's very interesting how they remove their mold. It's very similar to how snakes do. Next. Breeding behavior is extremely interesting. You have to understand first that scorpions are solitary creatures. They are nocturnal. They live alone. They don't socialize at all. ग्रुप्स में कभी नहीं रहते। हैबिटेट उनका रहता है कि लार्ज 5-6 बोल्डर्स का एरिया है सॉरी, उसमें स्प्रेड आउट पॉपुलेशन रहता है, बट ईच स्कॉर्पियन विल टेक हिज ओन हाइडिंग बरो, हिज ओन interesting spot and spend his life over there. They do venture out and they go in search of food somewhere else, but अगर नॉर्मली ऐसा है कि अगर 6 दिन पकड़ोगे आप तो 6 दिन में से एक आध दिन वो बाहर जाएंगे जब उनको प्रे नहीं मिलता। बाकी के दिन दे विल यूजुअली जस्ट वेट, स्टॉक एंड हंट। अपने बरो के माउथ के यहाँ पे बैठे रहेंगे, या फिर अगर वो किसी रॉक के अंदर जो स्लिट है उसके अंदर उनका घर है तो उसके बाहर माउथ को आके वो रुके रहेंगे। दे विल वेट एंड वेट एंड वेट टिल द प्रे कम्स देयर एंड देन दे विल बी फीडिंग ऑन इट। द ओनली टाइम when these animals come together is during mating. How that happens is very interesting. The female leaves certain pheromones. मतलब many of the animals, many insects emit pheromones. Scorpions भी females emit some pheromones, and males usually trail that pheromone and they find out the female. तो ये करने में इनको पेक्टिन का बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। मैंने जो पहले आपको बताया, जो उनके वेंट्रल साइड में जो ऑर्गन रहता है, जो मैंने आपको बोला कि वो मूव होता है, उस पर टीथ रहते हैं पेक्टिनल, तो वो पेक्टिन की सहायता से, पेक्टिन की हेल्प से ये अपने मेट को फाइंड आउट करते हैं। और उसके बाद इनका एक रिचुअलिस्टिक, बहुत ज़्यादा जिम्नास्टिक सॉर्ट ऑफ मेटिंग होता है, वेरी इंटरेस्टिंग वे। हम लोग मेटिंग को बहुत एंथ्रोपोसेंट्रिक नज़रिए से, मतलब ह्यूमंस के नज़रिए से देखते हैं, लेकिन इनका मेटिंग का पूरा प्रोसेस अलग रहता है। इनका जो मेल है वो स्पर्म्स डिपॉजिट करता है, स्पर्म्स का एक पाउच डिपॉजिट करता है, और फीमेल को पकड़ के ही ड्राइव्स हर टुवर्ड्स द स्पर्म्स so that she will fertilize them and then she will go into gestation. So fertilization and then further into gestation. तो ये जो सब चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा डांसेस होते हैं जो मेल्स और फीमेल्स साथ में डांस करते हैं। देयर इज कोर्टशिप गोइंग ऑन। देन मेनी टाइम्स वो माउथ पार्ट से, चेलिसेरा से और पेडिपाल्प से एक दूसरे को पकड़ते हैं, एंड द मेल एक्चुअली पुल्स द फीमेल टुवर्ड्स द स्पर्म्स। और
बहुत से बार ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड रहता है. सो एनीवेयर द एंटायर gymnastic, sexual gymnastic or ritualistic sexual behavior can go on anywhere from as short as 1 hour to 36 hours. ये चलता रहता है इनका. और इसके बाद जो है वो जेस्टेशन पीरियड में मादा जाती है. Gestation period is also very interesting. See, these animals, as I told you, 450 मिलियन साल से इवॉल्व हुए हैं. तो इवोल्यूशन का सक्सेस में ये भी पहलू आता है कि ये जो प्राणी है ये वर्स्ट कंडीशंस में अडेप्टेड है. मैंने जैसे आपको बोला कि राजस्थान की रेती में भी अब यू कैन सी स्कॉर्पियंस, और जम्मू कश्मीर की बर्फ में भी यू कैन सी स्कॉर्पियंस. गिलगित बल्गिस्तान से भी स्पीशीज डिस्क्राइब्ड है. खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का भाग है वहां से भी स्पीशीज डिस्क्राइब्ड है. तो बोथ एक्सट्रीम, सब जीरो टेम्परेचर और ऑलमोस्ट 48-49 डिग्री सेल्सियस, ये बोथ टेम्परेचर्स में यू कैन वाइडली सी स्कॉर्पियंस. तो इतने भयानक, इतने एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में भी ये सर्वाइव होते हैं. तो इनका सर्वाइवल सक्सेस जो है वो कहीं पे ब्रीडिंग पे भी आता है कि इनका जो ब्रीडिंग है वो काफ़ी अडेप्टिव है. ब्रीडिंग में जो जेस्टेशन पीरियड है वो यूजुअली एनिमल्स का फिक्स्ड रहता है, कुछ दिन आगे पीछे हो जाता है, लेकिन इनका फ्लेक्सिबल होता है. द जेस्टेशन पीरियड्स कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 3 months to 18 months, और ये निर्भर करता है फूड के ऊपर. अगर फूड मिलेगा नहीं, अगर ड्रॉट वाला सिचुएशन रहेगा, अगर बहुत ज़्यादा क्राइसिस सिचुएशन रहेगा और खाने पीने की बहुत ज़्यादा कमी होगी, प्रे नहीं मिल रहा होगा, टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा सोरिंग हो गए. जैसे हम लोग ये लेंगे, एक उदाहरण लेंगे कि ये ग्रासलैंड्स में हो रहा है या ड्राई एरिड एरियाज में हो रहा है, तो वहाँ पे द फीमेल हैज़ अ कैपेसिटी टू विड्रॉ हर एग्स, फर्टिलाइज एग्स, एंड यूटिलाइज देम फॉर हर न्यूट्रिशन. और वो साल स्किप करेगी वो ब्रीडिंग के लिए, एंड अगले साल वापस अटेम्प्ट करेंगे व्हेन द थिंग्स विल गेट नॉर्मल. इनमें ऐसे भी होता है कि अगर फूड नहीं मिल रहा है तो ये जेस्टेशन पीरियड अपना स्ट्रेच करेंगे और अंदर, बॉडी के अंदर ग्रो होने देंगे. ऐसे भी होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से फूड अवेलेबल है तो इनका जेस्टेशन पीरियड छोटा हो जाता है, जल्दी डेवलपमेंट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है और बच्चे बाहर आ जाते हैं. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. आपको अगर मीटिंग डांस देखना है इसका तो वो भी आप देख सकते हैं. यूट्यूब पे इसके वीडियोस भी आपको मिलेंगे, ब्रीडिंग बिहेवियर अगर देखेंगे तो. मेरे पास कुछ अपने रिकॉर्डेड भी वीडियोस थे, लेकिन वो मैं अभी टाइम की कमी की वजह से आई एम नॉट एबल टू शेयर. बट यू कैन चेक ऑन यूट्यूब, यू विल गेट अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन दिस. अगर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में देखोगे तो एक ऑर्गन दिखाया है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्पर्मेटोफोर. स्पर्मेटोफोर इज द सैक जिसके अंदर एग्स रहता है, एक केस रहता है, कैप्सूल रहता है, कैप्सूल के अंदर एक केस रहता है, और ये छोड़ता है मेल. तो इट इज अ interior part of the body, but it is released by the male and the female is directed towards it, from where she picks up the sperms. So next please. Another very interesting reason, मतलब मैं along with the fun facts I'm also trying to somewhere connect और मैच इट विद द इवोल्यूशन ऑफ दीज एनिमल्स. मैंने जैसे पहले आपको बोला कि 450 मिलियन साल, मतलब काफ़ी लंबा समय है, प्री हिस्टोरिक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं. इसका मतलब इन्फरेंस ये पक्का है कि दीज आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एनिमल्स ऑन द अर्थ. दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स ऑन द अर्थ, क्योंकि इनको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है. ये इतने परफेक्शन के पास गए हुए एनिमल्स हैं जो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में डील कर सकते हैं. तो अगर आप ये देखोगे तो इसमें सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो पेरेंटल केयर को है. आर्थ्रोपॉड्स में और वर्टिब्रेट्स में बहुत कम एनिमल्स है जिनमें पेरेंटल केयर देखने को मिलता है. अगर आप देखोगे कैट्स में तो काफ़ी सारा पेरेंटल केयर है, बट अगर आप यूजुअली आप अगर एंगुलेट्स देखोगे, आप एंटीलोप्स के वैरायटीज देखोगे तो उसमें जैसे ही बच्चा बाहर आता है, विद इन अ फ्यू मिनट्स इट विल बी ऑन इट्स फीट एंड इट विल स्टार्ट रनिंग. सो यहाँ पे वैसा नहीं है. पहले 1 से 2 हफ्ते बच्चे जो है वो मादा के पीठ के ऊपर लटके रहेंगे, वहाँ पे बैठे रहेंगे. दे विल नॉट वॉन्डर एनीवेयर एल्स. अगर वो आजू बाजू में कहीं पे जाते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे विल बी ईटन अप, दे विल बी प्रेडेटर. दूसरी ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि अगर ग्रासलैंड एरिया होगा, सेमी एरिड एरिया होगा, तो धूप इतनी रहती है, गर्मी इतनी रहती है कि उसकी वजह से डिहाइड्रेट होके भी मर सकते हैं.
तो इनको डिहाइड्रेट से बचाने का काम इनकी माँ करती है। जब माँ इनको पीठ पे रखती है तो उसके मेसोसोमल एरिया के यहाँ पे कुछ डक्ट्स रहते हैं जहाँ से कि न्यूट्रिशियस लिक्विड का सिक्रीशन होता है। इस सिक्रीशन के ऊपर ये बच्चे फीड करते हैं और इसकी वजह से इनको हाइड्रेशन भी मिलता है, इनकी ग्रोथ भी होती है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी इनको पहुंचते हैं और ऐसे करते हुए बच्चे बड़े हो जाते हैं। जो इसका स्टैंडर्ड लिटर साइज है बच्चों का, वो इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 1 बेबी टू 100 बेबीज, 1 स्कॉर्पियन टू 100 स्कॉर्पियंस। और मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 100 स्कॉर्पियंस अगर जन्म देते हैं तो सारे के सारे सर्वाइव नहीं हो पाते, एडल्ट रेट को काफ़ी कम पहुंचते हैं। तो वो तो कॉमन है, वो ऑल वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट, लेसर फौना आपको हर जगह पे, मैमल्स छोड़ के आपको देखने को मिलेगा कि मॉर्टेलिटी रेट्स काफ़ी हाई है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हाई रहती है इन टर्म्स ऑफ द टोटल नंबर। मतलब बहुत ज़्यादा एग्स डालते हैं, इंसेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा एग्स डालते हैं, तो उसमें मॉर्टेलिटी रेट चल जाता है इनका पर एम्ब्रियो, पर एग, पर स्पर्म इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहता है। इफ़ यू कंसिडर मैमल्स, मैमल्स में ऐसे नहीं होता, हमारा इन्वेस्टमेंट एक ही एग में बहुत ज़्यादा रहता है। इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ the amount of nutrients that go in, the amount of genes that go in, the amount of DNA that is used, the amount of molecules that are utilized, biomolecules that are utilized, it's so large that उसको हम लोग इसलिए प्रोटेक्ट करते हैं। अपना पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा इन एनिमल्स से, but as compared to other insects, as compared to other lot of animals, there is absolutely zero parental care. Scorpions में you are able to see parental care, and that might be one of the reasons of success of scorpions. This might be one of the reasons why scorpions have reached the stage of surviving for so many million years and with very less changes within them. Next. Next, please. Yeah. So, hunting and foraging is very important. एक बात है कि when you imagine, you feel कि we have 3 or 4 meals a day, breakfast, lunch, high tea and dinner usually. स्कॉर्पियंस को भी दिन में एक हाथ दो बार, रात में, मतलब नॉट दिन में, दे आर नॉक्टर्नल, बट रात में एक हाथ दो बार खाना मिलता होगा, तो वैसे नहीं है। प्रिडेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, प्रिडेशन इज बेस्ड ऑन लॉट ऑफ टेक्निक्स, दो दे आर एक्सट्रीमली स्पेशलाइज्ड प्रेडेटर्स, दैट्स व्हाई दे हैव सर्वाइव्ड। बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड तरीके हैं इनके, जैसे मैंने बोला, इनके फुल बॉडी पे हेयर, ब्रिसल लाइक हेयर है जिनको सीटे बोलते हैं, जिसकी वजह से इनको सेंसिंग बहुत अच्छे से होता है। अगर आप एग्जांपल लेंगे कि किसी डेजर्ट की रेती में, समझो डेजर्ट नेशनल पार्क में राजस्थान में कहीं पे स्कॉर्पियन बरो के अंदर है, और अगर बरो के नज़दीक से कोई स्पाइडर मूव हो रहा है, तो वो स्पाइडर की मूवमेंट से रेती के ऊपर जो वाइब्रेशंस होते हैं, वो वाइब्रेशंस स्कॉर्पियंस को अपने बरो के अंदर बैठ के सेंस होते हैं। उसके अलावा दे हैव आईज, 2 मीडियन आईज on the top of the carapace in center, and usually 5 pair of lateral eyes, मतलब जो carapace है ऐसी, उसका जो lateral section है, वो lateral section में इस तरीके, इस जगह पे लेफ्ट साइड पे एंटीरियर पोर्शन पे 5 और राइट वाली एंटीरियर पोर्शन पे 5 ऐसे आईज है इनके। बट स्टिल इनकी जो विजन है वो बहुत रूडिमेंट्री है, बहुत बेसिक है। इतने सारे आईज होके भी इनकी विजन बहुत कम है, और ज़्यादा करके ये अपना जो सेंसिंग है वो पेक्टिन्स पे और सीटे, मतलब जो हेयर है इनके बॉडी के ऊपर, उसके ऊपर निर्भर करते हैं, और इससे वो बहुत अच्छे से फोरेज कर पाते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, इनको एवरीडे तो प्रे मिलता नहीं है, बहुत कम प्रे मिलता है, लेकिन इनका बायोलॉजिकल एक्टिविटी इस तरीके से सेट है, इनका मेटाबॉलिज्म इस तरीके से सेट है कि इनको पूरे साल में एक भी, मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि इनको पूरे साल में प्रे नहीं मिलता, तो स्टिल दे सर्वाइव। द एनिमल, द स्कॉर्पियन कैन पुल ऑन फॉर एन एंटायर ईयर, एक साल पूरा खींच सकते हैं विदाउट फूड। और इसका जो मंत्र है, इसका जो टेक्निक है इनका, वो आता है हाइबरनेशन में या एस्टिवेशन में। एक्चुअली हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, ये जो कॉन्सेप्ट्स है, ये हम ज़्यादा करके हर्पेटोफाउना में यूज़ करते हैं, जो फ्रॉग्स है, एम्फीबियंस है, बाकी रेप्टाइल्स है, इनमें यूज़ करते हैं कि ये हाइबरनेट करते हैं। हाइबरनेशन प्रोसेस कॉमन मैन को पता है कि अपना लैपटॉप हाइबरनेट होता है, अगर आप उसको शट डाउन नहीं करोगे, उसका फ्लैप बंद करोगे, तो वो हाइबरनेट होता है। तो उसका मतलब क्या है कि जब आप फ्लैप उसका बंद करते हो, शट करते हो,
और मेन पावर ऑफ नहीं करते हो, तो इट डजंट पुट ऑफ इटसेल्फ कंप्लीटली, पूरी तरीके से बंद नहीं होता, लेकिन उसका कंजम्पशन इतना कम हो जाता है, ना के बराबर कंजम्पशन हो जाता है। मतलब दीज एनिमल्स आर ऑलमोस्ट क्लोज टू डेड, बट दे आर नॉट डेड। And I feel very strongly that hibernation is one of the key elements for the survival of this species. ये एनिमल्स इतने साल, इतने मिलियन साल, इतने अच्छे से, इतने एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में, जैसे मैंने आपको बोला कि सब जीरो टेम्परेचर से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ये सर्वाइव हुए हैं। इसका मेन रीज़न यही है कि ये अडेप्ट करते हैं, और जब भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस होंगे, ये अपने आप को विड्रॉ करेंगे और हाइबरनेट करेंगे, बिल्कुल कंजम्पशन नहीं होने देंगे, बिल्कुल मतलब दे विल नॉट इनटेक एनीथिंग एंड दे विल नॉट यूज एनीथिंग। सो एनर्जी पूरा जीरो पे आता है, और एनर्जी कंजम्पशन भी जीरो पे आता है, और एनर्जी इनपुट भी जीरो पे आता है। सब जीरो टेम्परेचर्स में जो रहते हैं हिमालयाज में, या आर्टिक के नज़दीक वाले एरियाज में, स्नो कवर्ड एरियाज में, फ्रॉस्टिंग वाले एरियाज में, सब टेम्परेट एरियाज में जो भी स्कॉर्पियंस पाए जाते हैं, वो स्कॉर्पियंस, सारे स्कॉर्पियंस में एक स्पेसिफिक टेक्निक रहता है, जिसके अंतर्गत जब स्नो फॉर्म होता है, मतलब स्कॉर्पियन के ऊपर भी बर्फ जम जाती है, लेकिन इनके अंदर का जो बॉडीली फ्लूइड है वो जमता नहीं है। आप अगर हिमालय में कहीं पे भी ट्रैवल करोगे, और रात को कहीं पे भी 14,000 15,000 फीट पे लद्दाख में जाओ या स्पीति में जाओ, हिमालयाज में जाओ, आप अगर रात को कहीं पे टेंटेड कैंप साइट में रहोगे, तो सुबह नल को पानी नहीं आता, क्योंकि पाइप के अंदर का पानी जम जाता है, ठंड की वजह से पाइप के अंदर का पानी जम जाता है। तो अगर किसी भी एनिमल के अंदर जो कैपिलरीज है, उसके अंदर जो फ्लूइड्स है, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड है, तो जो मेनली ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है, जिसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से अपना बॉडी एक्टिव रहता है, वो अगर जम जाएंगे तो एनिमल मर जाएगा। So there is some type of specialized liquid inside these scorpions which live in sub-zero temperature, जिनके अंदर ये लिक्विड जमने नहीं देता, ये केमिकल्स ये लिक्विड जमने नहीं देते, और उनका सर्कुलेशन चालू रहता है, कंजम्पशन गोज टू मिनिमम, इट्स एज गुड एज हाइबरनेशन। मतलब जैसे मैंने आपको समझाया कि हाइबरनेट करते हैं तो बिल्कुल कंजम्पशन होता नहीं है, ऑलमोस्ट क्लोज टू डेड होते हैं, लेकिन जैसे ही स्नो मेल्ट होगा और धूप पड़ेगी और थोड़ी सी हल्की भी हीट होगी, तो ये एक्टिव हो जाएंगे, एंड इमीडिएटली इन दैट 1 मंथ और 2 मंथ्स ऑफ स्प्रिंग दैट हिमालय रिसीव्स, वो उसमें ब्रीड भी करेंगे, फोरेज भी करेंगे, खाना भी ढूंढेंगे, सब करेंगे। सो इनके प्रे में बहुत सी चीज़ें रहती है, छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं, लिजार्ड्स रहते हैं, लिजार्ड्स के और गेकोस के बच्चे रहते हैं, छोटे स्पाइडर्स रहते हैं। इंटरेस्टिंगली दे आर ऑल्सो कैनिबल। कैनिबल का मतलब आपको पता होगा, कैनिबल का मतलब है अपनी खुद की प्रजाति को खाना। सो वर्स्ट कंडीशन में अगर खाना मिला ही नहीं और सर्वाइवल की बात आ गई, तो स्ट्रॉन्ग मेंबर छोटे मेंबर को खा जाएगा, जुवेनाइल्स को खाएगा, सब एडल्ट्स को खाएगा, वीकर एडल्ट्स को खाएगा। और ये भी एक रीजन हो सकता है कि स्कॉर्पियंस हैव सर्वाइव्ड सो मेनी मिलियन ईयर्स एंड बिकम प्रीहिस्टोरिक, क्योंकि वर्स्ट कंडीशन में इनको खाना नहीं मिला, तो ये कैनिबलिज्म से सर्वाइव होंगे, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स तो सर्वाइव होंगे जो आगे ब्रीड करके और ज़्यादा अपनी प्रजाति बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक इवोल्यूशनरी रीज़न है इनका। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात है कि दे हैव लॉट ऑफ नेचुरली, मतलब इंटेलिजेंट प्रोटेक्शन भी है प्रेडेटर्स के अगेंस्ट। मतलब प्रेडेटर्स कौन है स्कॉर्पियंस के? तो अपने यहाँ पे अगर इंडिया में देखेंगे तो ऑल फॉरेस्ट एरियाज एंड डेजर्ट एरियाज, आउल्स आर द मेजर प्रेडेटर्स। आउल्स बहुत ज़्यादा फीड करते हैं इनके ऊपर। नॉक्टर्नल बर्ड्स, कुछ कुछ नॉक्टर्नल बर्ड्स भी फीड करते हैं। Sometimes, very rarely, but sometimes animals like foxes also manage to hunt them down and eat them. There are some large lizards, nocturnal lizards, which can feed on them. There are some very large spiders which may feed on very small scorpions. तो छोटे रहेंगे स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स बहुत बड़े रहेंगे, तो स्पाइडर्स खाएंगे स्कॉर्पियंस को, और बड़े स्कॉर्पियंस रहेंगे और छोटे स्पाइडर्स रहेंगे, तो वाइस वर्सा होगा। जिसको हम चमगादड़ बोलते हैं, बैट्स। सो अभी बैट्स काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में है कोविड-19 की वजह से। बैट्स के भी प्रे में स्कॉर्पियंस आते हैं, रात को बैट्स एक्टिव रहते हैं, रात को फूड फाइंड आउट करते हैं, फोरेजिंग के लिए जाते हैं। और जो इंसेक्टिवरस बैट्स है, मतलब जो
छोटे प्राणी खाने वाले बैट्स है वो डेफिनेटली फीड करते हैं इसके ऊपर। और रोडेंट्स है, मतलब जो माइस और रैट्स के फैमिली में जो भी एनिमल्स आते हैं वो भी इनके ऊपर फीड करते हैं। लेकिन बहुत से बार इनको मतलब रिपेल करने के लिए, इनको डराने के लिए बहुत सी चीज़ें स्कॉर्पियंस में इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक तो सारे स्कॉर्पियंस में वेनम है, लेकिन कुछ स्कॉर्पियंस में वेनम ज़्यादा जहरीला है, कुछ स्कॉर्पियंस में कम जहरीला है। थोड़ा बहुत वेनम के ऊपर तो काम हुआ है दुनिया में, लेकिन बेसिक बायोलॉजी के ऊपर बहुत काम होना ज़रूरी है। सो ये एक तो डराने की मेन चीज़ ये है कि इनके पास स्टिंगर है, ये स्टिंग करते हैं और इसके अंदर वेनम है, तो वेनम की हेल्प से ये रिपेल कर सकते हैं प्रेडेटर्स को। दूसरी बात है कि कुछ बड़े स्कॉर्पियंस है, जैसे कि इंडिया में काफ़ी सारे हेट्रोमेट्रस पाए जाते हैं, तो ये हेट्रोमेट्रस डराते हैं, हिसिंग करके डराते हैं। तो ये हिसिंग की वजह से भी छोटे प्रेडेटर्स जो है, जैसे छोटे फील्ड माइस हो गए या लिजर्ड्स हो गए, इनको इनको डराना आसान है। इनको अगर हिसिंग करेंगे तो हिसिंग से डर जाते हैं। सो नेक्स्ट, एक मिनट, ये अगर आप इमेज देखोगे, प्लीज पहले वाला, या ये इमेज देखोगे तो इसमें लोअर नीचे के तरफ आप देखोगे तो एक एसेसिन बग है ना। एसेसिन बग इटसेल्फ इज अ प्रेडेटर, और ऊपर अगर आप देखोगे तो स्कॉर्पियन है। तो स्कॉर्पियन एक एसेसिन बग को खा रहा है, क्योंकि समटाइम्स द एसेसिन बग ऑल्सो इट्स द स्कॉर्पियन। अगर स्कॉर्पियन बेबी होगा, छोटा होगा, बच्चा होगा, और एसेसिन बग बड़ा होगा, तो एसेसिन बग आराम से इसको स्टिंग करेगा। एसेसिन बग के आगे भी इसको एक रोस्टम रहता है, जिससे कि वो स्टिंग करता है और अपना टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर डालता है स्कॉर्पियन को। बट अगर बड़ा स्कॉर्पियन रहेगा तो वो आराम से एसेसिन बग को खा जाएगा। तो ये प्रे प्रेडेटर इवोल्यूशनरी जो आर्म्स रेस है इनका, जिससे कि ये अपना अपना आर्म्स बेटर बेटर करते जाते हैं। तो इससे ये प्रोसेस से, जैसे चीता फास्टेस्ट रनर बना है, टाइगर सबसे ज़्यादा पावरफुल हंटर बना है, लेपर्ड सबसे ज़्यादा अजाइल एम्बुश हंटर बना है, इसी तरीके से स्कॉर्पियन भी अपने अपने इसमें आगे माहिर हुए हैं, और इसी तरीके से प्रेडेटर्स भी आगे आगे ज़्यादा ज़्यादा चालाक होते जा रहे हैं। नेक्स्ट, हम अगर हैबिटेट्स देखेंगे तो प्रैक्टिकली ऑल हैबिटेट्स, माइक्रो हैबिटेट्स, एवरीवेयर स्कॉर्पियंस आर सीन। सबसे ज़्यादा अच्छी जगह देखने की ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स में बरोज के अंदर रहते हैं ये। दूसरी जगह है बोल्डर्स, बोल्डर्स के जो चिप्स रहते हैं उसके अंदर देखने को मिलते हैं। तीसरी जगह है जमीन के अंदर बरोज बनाए जाते हैं, वहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। डेजर्ट्स में जाओगे तो रेती में भी देखने को मिलते हैं, और जंगल में जाओगे तो पेड़ों पे भी देखने को मिलते हैं। पेड़ों के जो बार्क के जो छाले होते हैं, वो छालों के अंदर रहने वाले भी स्कॉर्पियंस है। अभी हाल में 24 मार्च को बार्क में रहने वाले 2 स्कॉर्पियंस की नई प्रजाति मैंने डिस्क्राइब की है अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर डी.बी. बस्तौड़े, हु इज अ ग्रेट स्कॉर्पियोलॉजिस्ट फ्रॉम इंडिया। एंड उन्होंने अपना पूरा लाइफ जेडएसआई में काम किया है, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू उन्होंने स्कॉर्पियन फौना लिखा है पूरा भारत का। भारत में पिछले 30 सालों में जितनी भी स्पीशीज डिस्क्राइब की है, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन डॉक्टर डी.बी. बस्तौड़े का सर का है। तो सर के साथ मैंने भी काफ़ी काम किया है लेटली, और अभी 2 स्पीशीज जो डिस्क्राइब की है, एक तामिनी सेंचुरी से है जो पुणे के काफ़ी नज़दीक है, और दूसरी अम्बोली से है। अम्बोली तो काफ़ी लोगों को पता होगा, क्योंकि मानसून्स में अम्बोली वाटरफॉल इज़ वेरी ब्यूटीफुल और हर्पेटोफाना के लिए बहुत फेमस है। तो इस तरीके का जो अभी आपको दिख रहा है, उस तरीके का रॉकी बोल्डर हैबिटेट भी स्कॉर्पियंस के लिए बहुत अच्छी जगह है। नेक्स्ट, टॉल ट्रीज, जैसे मैंने बोला आपको कि बार्क स्कॉर्पियंस भी बहुत सारे रहते हैं। मैंने अभी 2 स्पीशीज डिस्क्राइब किए, उसके बारे में मैं एंड को आपको बताऊंगा। ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड एंड स्क्रबलैंड्स बरोज में अपना अपना बरोज करते हैं। हर एक का बरो बनाने का तरीका भी अलग रहता है, तो बरोज के ऊपर भी, मतलब बरोज का ओपनिंग देख के उसका कैसा राउंड है, क्रिसेंट शेप है, डेप्थ कितना है, एंट्रेंस कितना बड़ा है, उसके ऊपर से भी हम लोग ये समझ सकते हैं ये किस टाइप का स्कॉर्पियन होगा। नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला, रेती में, डेजर्ट्स में बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियन की स्पीशीज देखने को मिलती है। अपने को लगता है कि मतलब इट्स अ जेनरिक फील दैट डेजर्ट्स में डाइवर्सिटी बहुत कम रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्वर्टिब्रेट्स की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट स्कॉर्पियंस यू नो
नॉर्दर्न अमेरिका के कुछ डेजर्ट्स में, एरिजोना में या सब सहारन डेजर्ट्स में, कलाहारी में इतने ज़्यादा स्कॉर्पियंस है कि हर एक स्क्वायर फीट में आपको कुछ स्कॉर्पियंस देखने को मिलेंगे अगर आप इन्वेस्टिगेट करने को जाओ तो। नेक्स्ट प्लीज। Most important thing, as I told you, the another success for survival and evolution of these species is they have adapted to every change that earth has given. So अगर 450 साल देखोगे तो अर्थ ने बहुत ज़्यादा धक्के दिए इनको। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद उसका एक्सटिंक्शन हुआ, फिर जुरासिक एरा था उसका एक्सटिंक्शन हुआ, साइबेरियन इरप्शंस हुआ, डेक्कन ट्रैप इरप्शंस हुआ, एस्ट्रॉइड्स हिट हुए कई तरीके के। ये तो सारे कैटास्ट्रोफिक, बहुत सारे ज़्यादा जानलेवा चीज़ें इस प्लैनेट के ऊपर हुई है। और सबसे लास्ट अगर आप कैलामिटी देखोगे तो वो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन विच इज़ मैन मेड। तो ह्यूमंस की वजह से बहुत ज़्यादा हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया श्रिंक होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा डेजर्ट्स कम होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेटलैंड और वाटर बॉडीज फिनिश होती जा रही है। तो इन सब का भी असर स्कॉर्पियन पॉपुलेशन के ऊपर डेफिनेटली हो रहा है, बट उसमें भी मैं कहूँगा कि स्कॉर्पियंस आर स्मार्टर देन अदर सेंसिटिव एनिमल्स बिकॉज दे हैव सर्वाइव्ड। आज आपको देखने को मिलेगा कि ह्यूमन हैबिटेशन के आजू बाजू में जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे गांव बसे हैं, जहाँ पे कस्बे हैं, वहाँ पे भी आपको स्कॉर्पियंस देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि स्कॉर्पियंस आजू बाजू में भी मतलब जैसे छोटा शॉर्ट वॉल रहता है, बहुत सी जगह पे फार्मलैंड्स को भी शॉर्ट वॉल बनाते हैं, पत्थर का ऐसा हेज बनाते हैं। तो हेजिंग जो पत्थर का किया जाता है उसके अंदर भी स्कॉर्पियंस देखने को मिलेंगे। जो घर रहते हैं घर के अंदर भी स्कॉर्पियंस देखने को मिलेंगे। ह्यूमंस से काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आपको स्कॉर्पियंस देखने को मिलेंगे, लेकिन ह्यूमन से ज्यादा इंटरेक्शन होगा नहीं। और उसका कारण ये है कि ये रात को बाहर पड़ते हैं, ये चुपचाप बाहर पड़ते हैं, वाइब्रेशंस का बहुत ज़्यादा इनको ध्यान रहता है। तो अगर गाँव के आजू बाजू में भी स्कॉर्पियंस का कहीं पे वास्तव्य है तो उनको ये पता होता है कि कब बाहर पड़ना है। तो जब पूरा गांव शांत हो जाएगा, जब ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, तभी ये बाहर आएंगे, इनका काम करेंगे, प्रे पे फीड करने की कोशिश करेंगे, इंसेक्ट्स पकड़ेंगे, बाकी चीज़ें पकड़ेंगे और अपने बरोज में वापस जाएंगे। दिन पूरा बरोज के अंदर या पेड़ों के छिलके के अंदर ये स्पेंड करेंगे। नेक्स्ट। या मैं टैक्सोनॉमी के बारे में ज़्यादा इन डिटेल बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वैसे वो काफ़ी बोरिंग हो सकता है। अगर आप देखने को जाओ तो इन डेप्थ टैक्सोनॉमी मतलब जो क्लासिफिकेशन रहता है स्पीशीज़ का, अलग अलग फैमिलीज़ में, अलग अलग इसमें हम क्लासीफाई करते हैं स्पीशीज़ को और आइडेंटिफाई करते हैं। इसका जो साइंस है, ये सब आइडेंटिफाई करने का जो साइंस है, उस चीज़ को टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन आई थिंक सो इन दिस लेक्चर आई विल नॉट टच एट टैक्सोनॉमी। मैंने ज़्यादा कोशिश की है कि आपको इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स ज़्यादा बता दूं, बिकॉज उसमें से अगर कुछ लोगों को इंटरेस्ट होगा, कुछ लोगों को आगे प्रोजेक्ट्स परस्यू करने होंगे, कुछ लोगों को एमएससी कर रहे हैं, कुछ लोग परस्यू कर रहे हैं, उनको डेजर्टेशन में स्कॉर्पियंस के ऊपर कुछ करना होगा, तो डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू ऑल एंड आई कैन गाइड यू। बट एज ऑफ नाउ आई विल जस्ट टेल यू विच आर द फैमिलीज। दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली है बुथिडी। बुथिडी में बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियंस है। इंडिया में भी बुथिड स्कॉर्पियंस बहुत ज़्यादा है। और जो दो स्पीशीज़ अभी जो मैंने डिस्क्राइब की है 24 मार्च को, जो पेपर रिसेंटली पब्लिश हुआ है, उसमें भी दोनों स्पीशीज़ बुथिड ग्रुप से ही है, बुथिड फैमिली से ही है। ये लाइकस की स्पीशीज़ है। इंडिया में लाइकस की काफ़ी वैराइटीज़ देखने को मिलती है। अभी और भी कुछ स्कॉर्पियोलॉजिस्ट है इंडिया में जिन्होंने लाइकस की नई स्पीशीज़ रिसेंटली डिस्क्राइब की है पिछले महीने में। नेक्स्ट। आर्थोकायरस का स्पीशीज़ है जीनस आर्थोकायरस। ये काफ़ी ड्राई एरियाज़ में, सेमी एरिड ग्रासलैंड्स में देखने को मिलता है। फॉरेस्ट एरियाज में भी, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में, लीफ लिटर में देखने को मिलता है। देयर आर लॉट ऑफ आर्थोकायरस स्पीशीज अगेन फ्रॉम द बुथिडी। बुथिडी का आप एक मार्क देखोगे तो उसका जो टेल्सन है, मतलब जो पीछे का टेल है, वो ज़्यादा थिक रहता है और पेडिपैल्प्स जो है वो काफ़ी थिन है। तो मतलब इनको पेडिपैल्प्स जो रहते हैं, आगे के जो चिमटे आंकड़े रहते हैं, जो मैंने आपको बोला, तो इनके जो चिमटे हैं या आंकड़े हैं, जो भी आप उसको बोलो, तो उसमें ज़्यादा ताकत होती नहीं। तो ये एक ज़्यादा करके आपको दुनिया में पाया जाएगा कि जिनके पेडिपल्प्स वीक है, उनके मेटासोमस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनके वेनम कंटेंट भी ज़्यादा जहरीला होता है और ज़्यादा वेनम कंटेंट होता है।
और जिनके पेडिपल्प बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनका टेल्सन उतना डेवलप नहीं होता, मतलब उतना स्ट्रांगली डेवलप नहीं होता, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत से बार हेटेरोमेट्रस जैसे जो बहुत बड़े स्कॉर्पियंस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियंस है, वो अपने पिंसर्स से, मतलब अपने मैनस के जो फिंगर्स है उसी से प्रे को पकड़ लेते हैं, उनको स्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, अगेन अ बूथिड स्कॉर्पियन, हॉटेंटोटा सबसे ज़्यादा कॉमन स्पीशीज़ है, कॉमन जीनस है, और हॉटेंटोटा के बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ दुनिया में है। हॉटेंटोटा स्प्रेड आउट है इंडिया के बाहर भी, और ऐसे कहा जाता है कि शायद हो सकता है कि उसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग जेनेरा भी होने की संभावना है। अभी मॉलिकुलर स्टडीज़ हुए नहीं है इन पे। रिसेंट टेक्निक्स टैक्सोनॉमी के ये है कि अलॉन्ग विद द बेसिक मॉर्फोलॉजी, जो उसका जो मेजरमेंट्स है, उनका जो ऑर्गन्स है, उनका जो आउटर स्ट्रक्चर है, उसके अलावा मॉलिक्यूलर टूल्स यूज करके मॉलिक्यूल लेवल को उनका जेनेटिक्स भी स्टडी किया जाता है, और उससे भी स्पीशीज अंडरस्टैंडिंग बनता है। नेक्स्ट, यस, दिस इज आइसोमेट्रस। इसी जीनस से दो स्पीशीज मैंने डिस्क्राइब की है। आई विल टॉक अबाउट इट इन फ्यूचर। ये बार्क स्कॉर्पियंस है। ये मैंने जैसे आपको बोला कि पेड़ों के छिलके के अंदर, मतलब पेड़ों का जो ये रहता है, कवर रहता है, तो लूज बार्क जिन जिन पेड़ों में है उसके अंदर छिपने की जगह होती है। इनके अंदर ये स्कॉर्पियंस रहते हैं और रात को बाहर निकलते हैं, प्रे करते हैं। बहुत कम बार ये पेड़ छोड़ के नीचे जाते हैं, बहुत से बार पेड़ छोड़ के आजू बाजू में जाएंगे लेकिन वापस वहीं पे आएंगे। नेक्स्ट, ये अनदर जीनस है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ये नियोस्कॉर्पियोप्स कहते हैं इसको, और यूस्कॉर्पिडी फैमिली है, काफ़ी बड़ी फैमिली है। इसमें भी स्कॉर्पियोप्स जीनस में भी काफ़ी स्कॉर्पियंस आते हैं। इसके ऊपर भी काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। फिलहाल भारत में खाली वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है नियोस्कॉर्पियोप्स जीनस, और खाली 4 स्पीशीज है इसकी, जो एक नॉर्दर्न महाराष्ट्र से है और बाकी 3 प्योरली वेस्टर्न घाट्स से है डिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट, ये हुआ हेट्रोमेट्रस। ये गलती से फैमिली ऊपर यूस्कॉर्पिडी लिखी है, एक्चुअली ये स्कॉर्पियनिडी फैमिली से है, बट ये अगर आप देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, और इस जेनेरा के जो बिच्छू है वो काफ़ी जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप देखेंगे तो पूरे भारत में ये बिच्छू आपको कॉमनली देखने को मिलेंगे। इनमें बहुत ज़्यादा स्पीसीज भी है और बहुत ज़्यादा काम होने की भी आवश्यकता है। अभी देयर इज़ अ लार्ज गैप, बहुत ज़्यादा अंतर है ये समझने को कि पूरा स्पीसीएशन और टैक्सोनॉमी इसका कैसे रहेगा। फिलहाल तो सबसे ज़्यादा कोंकण एरिया में, वेस्टर्न घाट्स में, अप घाट्स, डाउन घाट्स, ये कॉमनली देखने को मिलते हैं। घरों के आजू बाजू में भी कॉमनली देखने को मिलते हैं, और इनका डंक जो रहता है वो काफ़ी जहरीला रहता है। बट अगर आप देखोगे तो आप इसका बॉडी प्रोपोर्शन देखोगे तो प्रोपोर्शन, मतलब बॉडी के हिसाब से इसका जो स्टिंगर है वो काफ़ी छोटा है। द रीज़न इसकी इसके पेडिपल्स काफ़ी थिक है। आप अगर इसका देखोगे तो आगे के इसके जो चिमटे हैं वो काफ़ी थिक है। नेक्स्ट, कुछ फन फैक्ट्स है जो, मतलब मैं जब टॉक शोज करता हूँ तो यूजुअली आई टॉक अबाउट दीज थिंग्स, बट बहुत सी चीज़ें इसमें से मैंने कवर की है ऑलरेडी। मोस्ट पीपल नो स्कॉर्पियंस कैन इन्फ्लिक्ट अ पेनफुल स्टिंग, बट नॉट मच else about the amazing arthropods. Find out 10 fascinating facts about the scorpions. इनका लाइफ बहुत लंबा है। या मैंने लाइफ के बारे में बात नहीं की है, बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है, लोग भी पूछते हैं कि कितना जीते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग लाइफ बहुत लंबा है, बट इट्स अ वेरी जेनरिक एक्सप्लेनेशन। इन रियलिटी वी डोंट नो स्कॉर्पियंस कितने जीते हैं। कैप्टिविटी में 25 साल तक जिए हैं, कैप्टिविटी में बिच्छू 25 साल तक जिए हैं, लेकिन वाइल्ड में, मतलब नेचुरल हैबिटेट में वो कितना जिएंगे ये किसी को पता नहीं है। जैसे मैंने बोला, बहुत बेसिक चीज़ें हैं इनके बायोलॉजी की, जो वी विल नॉट नो दैट। वर्टिब्रेट्स में भी, एम्फीबियंस में भी, मैंने एम्फीबियंस में भी काफ़ी काम किया है पहले। बहुत सी चीज़ें हैं जो कॉमन चीज़ें हैं, जो इनका एज कितना है, कितना जीते हैं, इनका मैच्योरिटी कितने इसमें आता है, बहुत सी चीज़ें पता नहीं है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मिस्ट्री, वी डोंट नो। मेटाबॉलिज्म बहुत लो है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि बहुत से बार ये साल भर खाते नहीं है। और इनका अगर वेंट्रल साइड देखोगे तो इनको बुकलंग्स है, मतलब ओपनिंग्स है स्मॉल, और उससे अंदर हवा अंदर जाती है, और अगर ये पानी के अंदर भी रहेंगे
तो इनको काफी देर तक इनको सर्वाइव हो सकता है। तो ये टेक्निक के यूज से अगर आप देखेंगे तो मैंग्रोव एरिया के जंगल में भी, मैंग्रोव फॉरेस्ट में भी आपको स्कॉर्पियंस देखने को मिलेंगे। मैंग्रोव मतलब जैसे सुंदरबन जैसे हैबिटेट हो गए, वहां पे भी आपको स्कॉर्पियंस, बिच्छू देखने को मिलेंगे। और लो मेटाबॉलिज्म का ये भी एक मंत्र है। मैंने जैसे आपको बोला था कि 450 मिलियन साल ये जिए है, तो इसका मतलब है देयर अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर द सक्सेस। तो उसका मेन ये भी रीजन है कि ये कैनिबलिस्टिक है, ये खुद को खाते हैं, ये अडेप्ट करते हैं, अलग अलग हैबिटेट्स में है, राइट फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ओके, दुनिया में हर एक खंड में, हर एक कॉन्टिनेंट में स्कॉर्पियंस पाए जाते हैं। एक ही कॉन्टिनेंट है जहाँ पे स्कॉर्पियन आज तक देखे नहीं गए और नहीं पाए जाते, वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में लाइफ बहुत ज्यादा कम है, थोड़े बहुत पंछी छोड़ के अंटार्कटिका में वी आर नॉट एबल टू सी मच ऑफ लाइफ। बट पहले जब अंटार्कटिका वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना, तब स्कॉर्पियंस वहां पे थे कि नहीं थे, वी डोंट नो। अभी तक अंटार्कटिका में बहुत कम एक्सपीडिशंस हुए हैं जो पैलियोंटोलॉजी का, जिन्होंने वहां पे जाके स्टडी किया है। अभी रिसेंटली एक पेपर पब्लिश हुआ था जहां पे बहुत रिसेंट फॉसिल एक मेंढक का मिला है फ्रॉम अंटार्कटिका। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर अंटार्कटिका में और काम किया जाए और एक्सकवेशन किया जाए तो इवन स्कॉर्पियन के फॉसिल्स मिल सकते हैं। इट माइट बी वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी ऑन दैट फैसेट। बाकी पूरे दुनिया के हर एक खंड में, जैसे मैंने बोला, मदर्स कैन अटैक एंड ईट देयर यंग वन व्हेन देयर इज नो अदर फूड अवेलेबल। जैसे मैंने आपको बोला कि सक्सेस स्टोरी थोड़ी सी हार्श लगती है, उसमें इमोशंस और फीलिंग्स नहीं होते, लेकिन सक्सेसफुल है। इसका मंत्र यही है, उसका सॉल्यूशन यही है कि इन्होंने बहुत सी चीजों में अडेप्ट किया है, बहुत सी चीजों में एडजस्ट किया है। तो बहुत बार अगर फूड की बहुत ज्यादा डेंसिटी होगी तो मादा अपने बच्चों को भी खा जाती है। दूसरा बात मैंने आपको बोला था कि बच्चे हंचबैक करते हैं, मतलब पीठ के ऊपर रहते हैं मादा के। सो यूजुअली 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक, मतलब 8 से 12 दिन तक वो पीठ के ऊपर राइड करते हैं। जो बच्चे 12 दिन के ऊपर मादा के पीठ के ऊपर चिपके रहेंगे, उनको माँ खा जाती है। तो नेचुरली जो बच्चों में, अगर 25 बच्चे हैं, उसमें 5 बच्चों का स्वभाव ये है कि वो थोड़े से डरते हैं और जाके उनको अपना टेरिटरी एस्टेब्लिश करने में दिक्कत है। जो बचे रहेंगे उनको माँ खा जाएगी। सो इट इज अ वे ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिससे नया जनरेशन जो सक्सेसफुली बाहर आएगा, दैट जनरेशन विल नेसेसरीली बी ब्रेव जनरेशन विच विल वेंचर आउट आफ्टर 7 to 12 days and go out and find its own territory and find its own food. So yes, venom is very costly. Investment of venom is costly. The same funda that goes in snakes, not every bite will be a venomous bite from snake. Similarly, not every attack by the scorpion will be with venom. वेनम ज्यादा कॉस्टली है, बनाना बहुत मुश्किल है, तो बहुत कम बार और बहुत कंजर्वेटिवली यूज किया जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। जस्ट अबाउट माई डिस्कवरी एंड एंड द स्लाइड शो, और उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो डेफिनेटली आई टेक। दिस इज अ रिसेंट पेपर विच वाज पब्लिश्ड ऑन 24 मार्च, 24 मार्च को ये पब्लिश हुआ है। दिस वाज पब्लिश्ड इन एन अमेरिकन जर्नल named Euscorpius, which only publishes papers and manuscripts on scorpion sciences in the world, and it is an America based journal. It's a topmost journal in scorpion biology. यहाँ पे जो पेपर पब्लिश किया है, ये इसका टाइटल है टू न्यू क्रिप्टिक स्पीशीज। क्रिप्टिक मतलब दिखने में बहुत ज्यादा सिमिलर दिखेंगे, मैं इसके बाद आपको फोटोज दिखाऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा बहुत ज्यादा सिमिलर दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो इसमें काफी सारे चेंजेस है। सो देयर आर टू न्यू क्रिप्टिक स्पीशीज ऑफ आइसोमेट्रस जीनस फ्रॉम फैमिली बुथिडी फ्रॉम द सदर्न वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। एक तामिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से डिस्क्राइब किया है और दूसरा अंबोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट। या अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लेफ्ट साइड में जो 1 नंबर का जो इमेज है दैट इज आइसोमेट्रस तामिनी, और राइट हैंड साइड में 17 नंबर का जो इमेज है वो आइसोमेट्रस अंबोली। अभी इसमें आप मैं टैक्सोनॉमी बताने को जाऊँ तो आप बोर होंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा फाइनर डिफरेंसेस है, बहुत कम नजदीकी डिफरेंसेस है जो फर्क है इनमें जो हमने स्टडी किए हैं। और उसके सबसे बड़ी चीज है कि हमने इसमें मॉलिक्यूलर टूल्स यूज किए हैं जेनेटिक सीक्वेंसेस के ऊपर। द सक्सेस ऑफ दिस पेपर वाज दैट आज तक जो स्कॉर्पियोलॉजिस्ट इंडिया में स्कॉर्पियन स्पीशीज डिस्क्राइब करते आए हैं, वो स्कॉर्पियन के स्पीशीज कलेक्ट करते हैं
उनका मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और फोटोग्राफ्स निकाल के उसको पब्लिश करते हैं। हम लोगों ने ये जो सिद्धांत है हमारा, जो हाइपोथेसिस है, वो 3 पहलुओं के ऊपर, मतलब 3 पिलर्स के ऊपर हमने बेस किया है। तो इसका एक पहलू है जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल है, पुराना पहलू है जो मॉर्फोलॉजी का है, कि इसका पूरा कैरेक्टर्स का स्टडी करो, एनालाइज करो, इसके कैरेक्टर्स निकालो, जो अलग है उसके हिसाब से इसको डिस्क्राइब करो। तो वो तो किया ही है हमने, वो तो बेसिक टैक्सोनॉमी है। जो दूसरा पहलू है ये होता है कि इसके अलग अलग जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है उसका मेजरमेंट्स लिया है वर्नियर कैलिपर से। इसके जो अंक लिए हैं, ये अंकों को हमने स्टैटिस्टिकली अलग अलग तरीके से एनालाइज किया है। तो इसको बायोस्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, कि बायोलॉजी के लिए यूज किया हुआ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है, जिससे हम लोगों ने इनमें जो बारीक फर्क है, जो छोटे छोटे फर्क है, जो दिखाने की कोशिश की है। और तीसरा जो सबसे बड़ा पहलू है दैट इज मॉलिक्यूलर वर्क। एक सिंगल मॉलिक्यूल से लेकर इसको अगर डिफरेंसेस देखा जाए तो जेनेटिक सीक्वेंसेस है इनमें, जो सेल्स है, सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस रहता है उसके अंदर डीएनए है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कुछ इंटरेस्टिंग डीएनए रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से जो डीएनए निकाला है, इस डीएनए को हमने सीक्वेंसिंग में पीसीआर थ्रू एम्पलीफाई करके इसका सीक्वेंसिंग बना के इसके सीक्वेंसेस एनालाइज किए हैं और अलाइनमेंट करके इनको एनालाइज किया है। और एनालिसिस में हम लोगों ने ये प्रूव किया है कि इनमें डिफरेंसेस है। तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से ये 2 स्पीशीज में अगर हम लोग क्लोज भी बोलते हैं फिर भी 7% डिफरेंस है। और आज की तारीख में अगर आप देखोगे पूरा साइंस का अगर आप एनालाइज करोगे तो 7% डिफरेंस इज नॉट स्मॉल टू से दैट दीज आर 2 डिफरेंट स्पीशीज। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ह्यूमंस में और ह्यूमंस की पुरानी स्पीशीज में इतने ज्यादा फर्क नहीं है। सो अगर आप देखोगे तो यू ऑल नो दैट चिंपैंजीज आर वेरी क्लोज रिलेटेड कजिन्स, और हमारा और ह्यूमंस का, होमोसेपियंस का और चिंपैंजीज का कॉमन एंसेस्टर था। तो ह्यूमंस में और चिम्प्स में ऑलमोस्ट इतना क्लोजनेस है। सो इतना क्लोजनेस है, उस हिसाब से 6% डिफरेंस इज ह्यूज। तो 6% के ऊपर डिफरेंस है इन दोनों में, और इसीलिए ये 3 पहलू के ऊपर बेस्ड स्टडी है। और इसको हम लोग टर्म करते हैं इंटीग्रेटेड टैक्सोनॉमिक अप्रोच। इंटीग्रेटेड मतलब हम लोगों ने इन 3 पहलुओं को साथ में लाया है और इनको फ्यूज करके हमारा हाइपोथेसिस स्ट्रेंथन किया है। तो दिस इज वन ऑफ द डिस्कवरीज, और बहुत ज्यादा डिस्कवरीज आने हैं। और इस डिस्कवरीज को कैसे आते हैं, तो इनर के इंफ्रास्ट्रक्चर के हेल्प से, इनर के लेबोरेटरी से, हमारा जो लैब इक्विपमेंट्स है इसकी वजह से, और मुझे जो फंडिंग मिलता है इसके बेसिस पे मैं बहुत ज़्यादा फील्ड सर्वेस करता हूँ, भारत में अलग अलग जगह पे जाता हूँ, अलग अलग जगह से कलेक्शन करता हूँ, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ इन सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर जुड़े हैं। सो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, एमएससी परस्यूइंग स्टूडेंट्स है, जिनके साथ मैं काम करता हूँ। और आप ऑडियंस में से अगर किसी को आगे स्टडी परस्यू करना है, ऐसा नहीं है कि खाली साइंस ग्रेजुएट्स और साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को भी कीनली इंटरेस्ट होगा साइंस में तो आप ज्वाइन कर सकते हो। स्कॉर्पियन साइंस में अगर इंटरेस्ट होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपको साइंटिफिक एक्यूमेन रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा परसिवरेंस रखेगा। परसिवरेंस मतलब आपको दम लगा के काम करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस बेसिस पे काम करना पड़ेगा। और ऐसे लगता है पहले पहले बच्चों को तो बहुत ज्यादा लगता है, जो 11th-12th में होते हैं या ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे होते हैं, वाइल्ड लाइफ साइंसेस में काम करना होता है, उनको ऐसे लगता है कि लाइफ बहुत ग्लैमरस है वाइल्ड लाइफ साइंस में। आप अगर बाहर जाओ तो बस जंगलों में और अलग अलग अच्छी सुंदर जगहों पे घूमने को मिलेगा। तो मैं सबको ये बता देना चाहता हूँ कि साइंस डजंट वर्क दैट वे। आपको 10% फील्ड वर्क है, और जिसमें भी आपको आगे टाइगर भी दिख रहा होगा, लायन भी दिख रहा होगा, या और कोई इंटरेस्टिंग चीज दिख रही होगी, तो आप अगर कलेक्शन के लिए गए हो, आप अगर ट्रांसेक्ट सर्वे के लिए गए हो, आप कोई और डेटा कलेक्ट करने के लिए गए हो, तो आपको वो छोड़ के आपको खाली आपका कलेक्शन करना है। तो वो एक डेडिकेशन से काम करना पड़ता है, उसमें परसिवरेंस भी लगता है, उसमें पेशेंस भी लगता है, उसमें सेल्फ कंट्रोल भी लगता है। लेकिन ये सब मिला के भी आपका फील्ड वर्क जो है वो 10% होगा, और लैब वर्क जो है वो 90% होगा। 90% आपको एनालिसिस पे काम करना होगा, कलेक्शन करके प्रिजर्व करना होगा, उसका एनालिसिस करना होगा, बहुत ज़्यादा रीडिंग करना होगा, बहुत ज़्यादा पेपर्स डाउनलोड करने होंगे, क्रॉस रीडिंग करना होगा, बैकग्राउंड स्टडी क्रिएट करना होगा, उसके बाद आपका एनालिसिस बनेगा, हाइपोथेसिस बनेगा आपका।
सो ये था मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन था एक स्कॉर्पियन साइंस का आपके लिए. I hope all of you might have enjoyed this, and I will open this for questions from any of the viewers. अगर आपको कुछ questions पूछने हैं तो definitely आप पूछ सकते हैं. Maybe the fluorescence will help the scorpion to see each other at night. Yes, interesting question. विपुल जी, ऐसा है कि फ्लोरेसेंस जो है वो यूवी रेज एमिट करने के बाद ही ह्यूमन आई को दिखता है. वी रियली डोंट नो कि मूनलाइट में या अलग किसी लाइट में यूवी रेडिएशन एक अलग फ्रीक्वेंसी को होता है क्या, और अगर होता है तो उसका क्या असर पड़ता है इनके ऊपर. बट इट इज डेफिनेटली द फ्लोरेसेंस हैपेंस ओनली इन द UV reflection, and that is because of the chemical called beta carotene, which is there in the top layer of the skin of the animal. और उसका evolutionary presence we don't know. As I said, अगर बायोफिजिक्स की बात करेंगे, अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, तो इन्वर्टिब्रेट्स में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है. हमको कुछ भी पता नहीं है अभी. I hope I have answered this question. सर, स्कॉर्पियन बुकलंग्स नेम के रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रेस्पिरेशन करता है, सो उसके बारे में कुछ डिटेल्स दीजिए. बुकलंग्स आर ऑन द वेंट्रल साइड, और बुकलंग्स ओपनिंग्स है जहाँ से स्पाइरकल जैसे ओपनिंग्स है जहाँ से हवा अंदर जाती है, और देन अंदर इट मूव्स विद इन, and of course oxygen is absorbed and unwanted elements are exhaled out. It's a normal system which is there in most of the many insects. Also you have a very similar system. Even caterpillars have spiracles on the ventral side. It's a very similar system to that. Can you able to explain some briefing relation between scorpion and Egypt? No, unfortunately, I'm very sorry, but I can't answer this question because मुझे पता नहीं है. But इतना definitely पता है कि सोमालिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, नामीबिया, केन्या, इन सब एरिया से, एंड इंक्लूडिंग इजिप्ट ऑल्सो, इन सब एरिया से बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियन का रिसर्च चल रहा है. देयर आर लॉट ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट हु आर वर्किंग इन अफ्रीकन कंट्रीज. एक ऐसा है कि अफ्रीका, ऑल कंट्रीज इन अफ्रीका हैव बीन फॉर लॉट ऑफ ईयर्स, मतलब बहुत अभी तक उनके ऊपर ब्रिटिश रूल था. तो इसकी वजह से अफ्रीका में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, और अभी भी अफ्रीका के नए नए स्पीशीज एवरी सिंगल डे डिस्क्राइब होता है, बहुत ज़्यादा टैक्सोनॉमी डिस्क्राइब होती है. अब और जैसे मैंने पहले भी बोला मेरे लेक्चर में, मेरे स्लाइड शो में, कि देख के ऐसे लगता है कि अफ्रीकन एरिया इज अ डेजर्ट एरिया. सो सब सहारन डेजर्ट में बहुत ज़्यादा हीट प्रोन एरिया में रेती में स्कॉर्पियंस दिखने को नहीं मिलते होंगे. बट स्टनिंगली जितना फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी है उससे ज़्यादा डाइवर्सिटी यू विल बी एबल टू सी इन ग्रासलैंड्स एंड सेमी एरिड एरियाज एंड एरिड एरियाज इन अफ्रीका. नेक्स्ट, how many species in India as of date? Yes, thanks a lot, Mr. Kuldeep, because I have forgotten this to answer this. Actually, I should have told this. India का total composite account अभी तक किसी ने किया नहीं है. जो किया था 2012 में किया था वो महाराष्ट्र का फौना था. उसके पहले भी किया था, डॉक्टर DB बस्तोड़े सर ने किया था, वो बहुत पुराना हो चुका है. उसमें उसके बाद बहुत ज़्यादा स्पीशीज ऐड हो चुके हैं. हम लोग उसको पब्लिश करने के प्रोसेस में हैं. बट एज ऑफ नाउ आई कैन टेल यू देयर आर क्लोज टू 120 स्पीशीज इन इंडिया, and overall in the world we are close to 2000 species. So not bad, 5% of the account comes to India. We are a very diverse country when it comes to all the animal kingdom and plant kingdom as well. The main reason for that is we have lot of habitats. इंडिया में बहुत ज़्यादा हैबिटेट्स है. हिमालय की वजह से ऊंचाई है, सम सॉर्ट ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट है, फ्रॉस्टिंग है, सब टेम्परेट जैसा भी हैबिटेट है, बहुत ज़्यादा बर्फ में रहने वाले पेड़ पौधे हैं, तो उनके हिसाब से एनिमल लाइफ भी इवॉल्व हुआ है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, central India has deciduous forest with grasslands. Rajasthan and Gujarat has got semi-arid and arid deserts. Western Ghats has one of the most luxuriant and superfine semi-evergreen and evergreen forest in the world.
एंड द ईस्टर्न साइड जिसको धारवाड़ क्रैटन बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा पुराना एरिया है, बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया है, जहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलता है। सुंदरबंस डेल्टा है जहाँ पे मैनग्रूव्स है, वहाँ पे अलग टाइप का फोना देखने को मिलता है। आई एम ओनली टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू स्कॉर्पियंस, बट इट अप्लाइज टू ऑल फोना यूजुअली। और एंडमन्स भी एक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियंस देखने को मिलते हैं। एंडमन्स में भी काम बहुत कम हुआ है। एंडमन्स के परमिट लेके वहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट्स ने, मास्टर्स परस्यूइंग स्टूडेंट्स ने जाके काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट काम हुआ नहीं है। बहुत कम स्कॉर्पियन स्पीशीज़ पे काम हुआ है वहाँ पे। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, वहाँ पे भी मल्टीपल हैबिटेट्स है, वहाँ पे भी स्कॉर्पियंस देखने को मिलते हैं। वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ होने की संभावना है। जो सातपुड़ा और विंध्यास है, ये भी बहुत ज़्यादा पुराने एरियाज़ है। और नर्मदा सोन रिवर के नॉर्दर्न रिजेस जो है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरियाज़ है और रॉकी एरियाज़ है जहाँ पे काम होने की ज़रूरत है। Basically, Zoological Survey of India is the official nodal agency in India which is working on lot of zoological aspects. तो जबलपुर का जो Zoological Survey of India है, कोलकाता का जो ZSI है, पूना का जो ZSI है, साउथ का जो ZSI है, वहाँ से लोग अलग अलग एरियाज से लोग काम कर रहे हैं स्कॉर्पियंस के ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव काम नहीं चल रहा है। गुजरात में तो बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ है। आर्थोकायरस की बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ मिलती है, बूथिड स्कॉर्पियंस बहुत ज़्यादा है। गुजरात के ऊपर मैंने पर्सनली ज़्यादा काम किया नहीं है, बट अभी देयर इज़ अ नीड दैट आई एम गोइंग टू टारगेट गुजरात एंड राजस्थान एज वेल। राजस्थान बॉर्डर और गुजरात बॉर्डर पे भी बहुत ज़्यादा एरियाज़ है जहाँ पे इंटरेस्टिंग स्पीशीज़ है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। एज आई टोल्ड यू, व्हेन आई एम सेइंग देयर आर 120 स्पीशीज़ इन इंडिया, द ओरिजिनल अकाउंट, मतलब मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ आपको, इसको कोई मतलब आई डोंट हैव एनी स्टैटिस्टिक्स टू बैक इट, बट आई डोंट सी द नंबर बीइंग बिलो मिनिमम 1000। 1000 स्पीशीज तो कहीं नहीं जाती, इतनी स्पीशीज तो इंडिया में डेफिनेटली है जिसके ऊपर काम ही हुआ नहीं है। और अगर हम आजू बाजू के कुछ टेरिटरीज ऐड भी करेंगे, जैसे एंडमन्स हो गया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कुछ एरियाज हो गए, तो बहुत ही ज़्यादा होगा। मतलब we just have right now we might be having not even 10% species which we have discovered. 120 is too less of an account। अगर आप देखोगे इसमें बहुत ज़्यादा स्प्लिट है। और जैसे मैंने जो पब्लिश किया है, आइसोमेट्रस तामिनी एंड आइसोमेट्रस अम्बोली, टू टेल यू ऑल, ये दोनों स्पीशीज को इतने सालों में स्कॉर्पियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट वेर प्रिज्यूमिंग इट टू बी अ डिफरेंट स्पीशीज which is Isometrus maculatus, Isometrus thurstonii। ये दो ही स्पीशीज अपने यहाँ पे ऑलरेडी प्रिवेलेंट थी इंडिया में, तो यही दो स्पीशीज है ऐसे प्रिज्यूम कर रहे थे। जब जेनेटिक स्टडीज किया, जब मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज किया, जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, तब हमको ये समझ में आया कि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिएशन है। और ये खाली नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट का पार्ट किया है, सदर्न वेस्टर्न घाट में अभी हम गए ही नहीं है। सदर्न वेस्टर्न घाट्स में नॉर्थ ऑफ पालघाट गैप बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, साउथ ऑफ पालघाट गैप बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, शेनकोटा गैप के साउथ में भी काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पे वी आर श्योर देयर वुड बी लॉट ऑफ मोर स्पीशीज। ईस्टर्न घाट में भी बहुत ज़्यादा स्पीशीज होंगी जिसके ऊपर काम हुआ नहीं है। Which species are seen all over India commonly? So there are a lot of species which are famous, Nitin. So to tell you, Hottentotta is a very common genus। आपको हर जगह पे Hottentotta देखने को मिलेगा। Lycus is a very common genus। आपको बहुत सी जगह पे Lycus common मिलेगा। Heterometrus is a common genus। Heterometrus बहुत सी जगह पे मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप हैबिटेट वाइज देखोगे तो हैबिटेट वाइज अलग अलग स्पीशीज दिखेंगे। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है वो फॉरेस्ट में मिलेंगे आपको, जो एरिड ग्रासलैंड और सेमी एरिड ग्रासलैंड में दिखने वाले स्पीशीज है वो वहाँ पे मिलेंगे आपको। ड्रायर एरियाज में आपको ड्रायर एरियाज में दिखने वाले स्पीशीज मिलेंगे जिनको ज़्यादा ह्यूमिडिटी चलती नहीं है। और अगर आप हिमालयाज में जाओगे तो स्कॉर्पियोप्स जीनस बहुत ज़्यादा कॉमन है। वहाँ पे स्कॉर्पियोप्स मॉन्टानस मिलता है, स्कॉर्पियोप्स स्पिथियंसिस मिलता है। स्कॉर्पियोप्स बहुत ज़्यादा नई नई स्पीशीज़ है। अभी रिसेंटली मतलब मेरे ख्याल से अप्रैल एंड में एक पेपर पब्लिश हुआ है यूएस में, जिसके अंदर 9 नई स्पीशीज़ डिस्क्राइब की है। ऑल आर फ्रॉम हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज, नेपाल, फ्यू आर फ्रॉम चाइना, फ्यू आर फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ है और इंडिया की भी 2-3 स्पीशीज़ है उसमें। अरुणाचल में बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ है।
काम हुआ नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि ऐसे नहीं है कि एक ही स्पीशीज इंडिया में हर जगह पे मिलेगी। जैसे मैंने आपको बोला कि अभी तक मतलब मेरा जो ये पेपर रिसेंट हुआ है उसके पहले ये समझते थे कि दो ही स्पीशीज है, आइसोमेट्रस थर्सटोनी, आइसोमेट्रस मैक्युलेटस, और आप महाराष्ट्र में जाओ वही है, तमिलनाडु में जाओ वही है, कर्नाटक में जाओ वही है, केरला में जाओ वही है, वेस्ट बंगाल उड़ीसा में जाओ वही है। जब हमने उसका डिटेल में स्टडी किया तो ये समझ में आया कि नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स में ही दो स्पीशीज है, तामिनी में अलग है, अम्बोली में अलग है। हो सकता है नीचे कर्नाटक में भी अलग होगी, हो सकता है कि तमिलनाडु में और 2-3 स्पीशीज होंगी, हो सकता है कि केरला में और 2-3 स्पीशीज होगी। तो ऐसे नहीं बोल सकते। अगर जेनेरा वाइज बोल दूं तो यस, वेस्टर्न घाट का जो एंटायर रेंज है, मतलब डांग रेंज से जो चालू होता है वेस्टर्न घाट, वहां से केरला तक आइसोमेट्रस इज अ फॉरेस्ट ड्वेलिंग बार्क ड्वेलिंग स्पीशीज। ये जीनस हर जगह पे रहेगा, लेकिन इसके स्पीशीज अलग अलग रहेंगे हर जगह पे, लेकिन ये जीनस अपने को देखने को मिलेगा डेफिनेटली। वैसे ही अगर थोड़ा सा कोंकण साइड में जाएंगे, व्हेन यू गो डाउन द घाट्स, मतलब डाउन घाट सेक्शन देखेंगे, तो ये वेस्टर्न घाट रेंज में डाउन घाट जब जाएंगे तो हेट्रोमेट्रस हर जगह पे देखने को मिलेगा। अभी स्पीशीज सेम है कि अलग अलग है, ये डिस्कवर करना पड़ेगा, ये पता नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। व्हाई आर द स्मॉलर स्कॉर्पियंस मोर डेंजरस? ऐसा नहीं है कि स्मॉलर स्कॉर्पियंस आर मोर डेंजरस। दो तीन चीजें हैं कि जुवेनाइल्स जैसे स्नेक्स में होता है, जुवेनाइल्स में भी वेनोमोसिटी होती है, उतनी होती है, और उनमें भी क्षमता होती है स्टिंग करने की और आपको वेनम इंजेक्ट करने की। स्नेक्स का भी सेम रहता है। स्नेक बाइट्स, baby snakes also have similar bites and adult snakes also have similar bites. Scorpions में भी similar है कि छोटे बच्चे भी sting कर सकते हैं और stings are equally effective। लेकिन एक बताऊंगा कि जो, जैसे मैंने स्लाइड शो में भी बोला कि जो यूजुअली इसमें एक्सेप्शंस भी है, लेकिन यूजुअली अगर आप देखोगे वाइडली, जो स्कॉर्पियंस के पिंसर्स जो है वो आगे के जो पेडिपाल्स है वो स्लेंडर है, डेलिकेट है। उनका स्टिंगर, मतलब उनका जो स्टिंगर और उनका जो मेटासोमा रहता है, पीछे का जो टेल रहता है, वो काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। और जिनके आगे के जो औजार है पकड़ने के, ग्रिपिंग के, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। उनका मेटासोमास एवरेज साइज का रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटे ज्यादा जहरीले और बड़े कम जहरीले हैं। इन केस ऑफ एनी सिचुएशन वेनमस और सेमी वेनमस स्कॉर्पियंस बाइट करता है तो उसमें क्या करना चाहिए बिफोर रीचिंग हॉस्पिटल? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन। ओके, बाय द वे, बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन कि अगर बाइट हुआ, स्टिंग हुआ तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट थिंग, जस्ट टू शेयर एन एक्सपीरियंस, मुझे लाइफ में एक ही बार बाइट हुआ है, और वो भी मैं फोटोग्राफी कर रहा था, और ये काफी साल पुरानी बात है, 8-10 साल पुरानी बात है। तो मैं यही बताऊंगा सब एमेच्योर्स को कि जितना आप इन स्पीशीज से दूर रहो उतना अच्छा है। अगर आपको इसमें काम करना है, अगर आपको इसमें साइंटिफिक काम करना है, तो ही आपको हैंडल करना पड़ेगा, वरना आपको हैंडल नहीं करना पड़ेगा। अनदर थिंग इज, इसके वेनम के ऊपर साइंटिफिकली ज्यादा कुछ काम हुआ नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दुनिया के जो भी वेनम्स का एक्सट्रैक्शन करके वेनम के ऊपर काम हुआ है, humans have understood one thing, that none of them are really fatal। मतलब बहुत छोटे बच्चे को अगर डंक करता है तो हो सकता है कि फेटालिटी हो, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो फेटल नहीं है। तो हॉस्पिटल जाके भी कुछ नहीं होगा, सिम्टोमेटिक ट्रीट करेंगे, पेन किलर दे देंगे, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो आपको ज्यादा करके स्कॉर्पियन बाइट्स पे, स्कॉर्पियन स्टिंग्स पे कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है। जब मेरे को बाइट हुआ था तो मैंने कुछ नहीं किया था, मैं 4-6 घंटा मैं एक जगह पे बैठा था, एंड आई हैड बोन ऑल द पेन। जो भी मुझे तकलीफ हो रही थी वो मैंने सही थी, और 6-7 घंटे के बाद वो चला गया था। मेरे बहुत ही करीबी दोस्त डॉक्टर है, एमडी मेडिसिन है, वो खुद हॉस्पिटल चलाते हैं, उनको मैंने फ़ोन किया था उस वक्त और उनको पूछा था कि मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने बताया मुझे कुछ नहीं कर सकते, आप सहन करो, कुछ देर के बाद वो कम हो जाएगा अपने आप, और वैसा ही हुआ था, कुछ देर के बाद कम हो गया था। What is the first aid if we get stung by scorpion when on field? As I told you, अभी मैंने मोहित जी वही बताया कि फर्स्ट एड क्या है। तो फर्स्ट एड कुछ नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिकल कुछ पेन किलर, जो एनेस्थेटिक पेन किलर रहता है वो लगा सकते हो। ओरली भी आप कुछ पेन किलर ले सकते हो, जैसे कि डाइक्लोफेनेक हो गया, जो स्पेसिफिक एरियाज पे काम करता है। आप सस्टेन रिलीफ वाला भी डाइक्लोफेनेक यूज कर सकते हो। लेकिन
वैसे कुछ नहीं कर सकते आप। प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो सी द थिंग इज कि स्कॉर्पियन बाइट्स जो है वो फेटल नहीं है, तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। आपका हाथ या पैर जहाँ पे भी आपको स्टिंग हुआ है वो सूजेगा, ब्लैकिश ब्लू कलर का होगा, बहुत ज़्यादा आपको आपके जो वहाँ पे जो भी टिश्यूज़ है वो डैमेज होंगे, सेल्स जो है वो डैमेज होंगे, बहुत ज़्यादा आपको दर्द होगा, लेकिन वो अपने आप रिसीड करेगा और अपने आप वो फेज आउट करेगा। सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट इट। अभी आयुर्वेदा में, एंशिएंट इंडियन नॉलेज में बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, आई एम श्योर अबाउट इट, बट नथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, आई एम नॉट अवेयर अबाउट एनी ऑफ दोज थिंग्स। और डॉक्टर भाविस्कर साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया है स्कॉर्पियन वेनम पे, तो आप उनका अगर कुछ रीड करो, उनके बुक्स रीड करो, तो आपको इसमें थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल सकती है। Can you share some species photo found in Gujarat with travel name? Okay, I am very sorry कुलदीप जी, the problem is कि मैं अभी मोबाइल से ऑपरेट कर रहा हूँ, मेरे घर में वाईफाई नहीं है, तो मैंने जो पीपीटी है वो भी जो ऑर्गेनाइजर्स है उनको एक दिन पहले भेजा था और वो मेरे लिए रन कर रहे थे। मेरे पास फोटोज बहुत है और मैं बहुत शेयर कर सकता हूँ, लेकिन अभी मोबाइल में नहीं है। और गुजरात के जो भी स्कॉर्पियंस है, एटलीस्ट 1 ईयर में वी विल बी कमिंग आउट विथ, वी विल बी पब्लिशिंग विथ अ लिस्ट, और जो इस टॉक शो के ऑर्गेनाइजर्स है उनको मैं डेफिनेटली वो लिस्ट कम्युनिकेट करूंगा जब पब्लिश होगी, और उसमें पूरा अकाउंट रहेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस रहेगा। आज ये भी है कि कोई भी स्कॉर्पियन अगर आप पकड़ लो, जैसे आर्थोकैरस बाइकलर, अभी बोलते हैं कि आर्थोकैरस का बाइकलर का स्पीशीज गुजरात में भी मिलता है, लेकिन आप अगर आर्थोकैरस का टाइप लोकेलिटी देखोगे, मतलब जहां से वो ओरिजिनली ब्रिटिश साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया है फ्यू इयर्स बैक, मतलब कुछ 100 साल पहले अगर डिस्क्राइब किया होगा, तो वो डिस्क्राइब किया है सतारा के पास के एक गांव से, कस्बे के, यहाँ से एरिड एरिया है, सेमी एरिड एरिया है वहां पे। तो आज लोग एज्यूम करते हैं कि गुजरात में वही स्पीशीज है, लेकिन किसी ने स्टडी किया नहीं है, तो उसका जेनेटिक सीक्वेंसिंग, उसका बायोस्टैटिस्टिकल एनालिसिस, उसका ऑब्जर्वेशंस माइक्रोस्कोप पे करने के बाद ही पता चलेगा, कलेक्शन करने के बाद ही पता चलेगा कि गुजरात के स्कॉर्पियंस ये आर्थोकैरस बाइकलर है या नहीं है। बट कुछ स्पीशीज गुजरात से डिस्क्राइब्ड है, कुछ स्पीशीज राजस्थान से डिस्क्राइब्ड है, पर उसके फोटोज मैं वेरी सॉरी अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा। I think there is no more questions. Rishi, I think, yeah, before we end this, I'll be very, very grateful to you. 1.5 hour, lot of interesting questions, and मैं मेरी तरफ से और मेरी इंस्टीट्यूट की तरफ से भी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, और साइंटिफिक नॉलेज स्केल डाउन करके पॉपुलर साइंस में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे ये टॉक शो शुरू होने से 2 मिनट पहले जब हम लोग ट्रायल पे आए थे, तो ऋषि जी और मैं वही डिस्कस कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा आज ज़रूरत क्या है, तो कॉमन लोगों तक अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत से एरियाज है जो ग्रासलैंड एरियाज है जिनको हैबिटेट समझा ही नहीं जाता, लोग समझते हैं कि ये बैरन लैंड है, ये तो पड़ा हुआ जमीन है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। वेटलैंड्स है बहुत ज़्यादा, उनको कपड़े धोने के लिए, व्हीकल्स धोने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है। और जो भी आज कंजर्वेशन प्रायोरिटीज है, उस हिसाब से इन एरियाज को कंजर्वेशन का प्रायोरिटी नहीं दिया जाता। अगर टाइगर रहेगा, अगर लायन रहेगा, अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट रहेगा, तो उसके लिए फंडिंग आता है, उसको प्रोटेक्शन आता है, उसको सेंचुरी डिक्लेयर किया जाता है, नेशनल पार्क किया जाता है, प्रोजेक्ट में भी कन्वर्ट होता है। लेकिन ग्रासलैंड एरिया रहेगा, जैसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग ग्रासलैंड्स आपके गुजरात में ही है, बहुत ज्यादा बन्नी ग्रासलैंड्स है, रण ऑफ कच्छ है। दुनिया में कच्छ जैसा कहीं भी हैबिटेट नहीं होगा, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा, लेकिन उसको लिमिटेड प्रोटेक्शन है। और सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है टाइगर रिजर्व्स को इंडिया में, जहां पे बहुत ज्यादा टाइगर की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है, अभी स्पिल ओवर हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो ये जो सब टॉक शोज या जो भी अवेयरनेस ड्राइव्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि आपके माध्यम से नेचर क्लब सूरत, वाइल्ड लाइफ एंड नेचर वेलफेयर ट्रस्ट और कोएग्जिस्टेंस विद पाइथन, तीनों ट्रस्ट ने, तीनों संस्थाओं ने साथ में आके ये जो लॉकडाउन कोविड-19 के पैंडेमिक में जो ये इनिशिएटिव लिया है, एवरीडे वेबिनार सीरीज वाइल्ड लाइफ के अलग अलग टॉपिक्स पे, इसमें मुझे
पार्टिसिपेट करने की और मेरा नॉलेज शेयर करने की का प्लेटफॉर्म दिया, मेरा नॉलेज शेयर करने का एक अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। एक्चुअली वी थैंक यू बिकॉज आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, जो स्कॉर्पियन जैसा जो न्यूक्लियोटाइड स्पीशीज है उसके ऊपर आप जैसे लोग काम कर रहे हैं, आप जैसे लोगों की ज़रूरत हमें है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर सकें और आपके साथ जुड़ सकें। थैंक एब्सोल्युटली। यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड कंसीडरिंग आवर रिक्वेस्ट। थैंक यू ऋषि, थैंक्स अ लॉट। Thank you so much viewers for थैंक यू। joining us.